नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोये सव्व साहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पावप्पणसणो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसीं मंगलाणं च सौवेसी पद्मं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है सत्यं निश्चय वन्द्य है 33 कोटि दैवगण 33 कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञ में जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय दे आशीषम् मंगलमय दो आशीषम् सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल की माफी दे गलती भूल की माफी दो व्यवहारे सद्बुद्धि हो व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में अभिवृद्धि दो जय सच्चिदानंद 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 ये सारी कितना हाँ, सारी
હિન્દી લીધી છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે 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 છે. જય સચ્ચિદાનંદ મંત્રના પુષ્પોની જય સચ્ચિદાનંદ મંત્રના પુષ્પોની જય સચ્ચિદાનંદ મંત્રના પુષ્પોની જય સચ્ચિદાનંદ મંત્રના પુષ્પોની અવિચ્છિન્ન માળા પહેરાવે છે. અવિચ્છિન્ન માળા પહેરાવે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. ઉઠતા ને બેસતા ફાઇલોની ગૂંચમાં ઉઠતા ને બેસતા ફાઇલોની ગૂંચમાં લૌકિક સંબંધોની મૂંઝવણની મૂળતામાં લૌકિક સંબંધોની મૂંઝવણની મૂળતામાં ઉઠતા ને બેસતા ફાઇલોની ગૂંચમાં ઉઠતા ને બેસતા ફાઇલોની ગૂંચમાં લૌકિક સંબંધોની મૂંઝવણની મૂળતામાં લૌકિક સંબંધોની મૂંઝવણની મૂળતામાં સૂક્ષ્મ રૂપે આવી પ્રકાશે છે. સૂક્ષ્મ રૂપે આવી પ્રકાશે છે. ગોળ ચાવીયુથી તાળા ઉગાડે છે. મૂળ ચાવીયુતે તાળા ઉગાડે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. જળથી જે દૂર મૂકી મછલી સી દશા મારી જળથી જે દૂર મૂકી મછલી સી દશા મારી આવે ના ચેન પલ છિન્ન કટે વારી આવે ન ચેન પલ છીન કટે બારી ત્યારે દરિયાવ દિલમાં જ બોળે છે. ત્યારે દરિયાવ દિલમાં જ બોળે છે. અને શાંતિ અનુપમ પમાડે છે. અને શાંતિ અનુપમ પમાડે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. એની યાદમાં ગુથાય જે ભક્તિ માળની સદિન યાદમાં ગુતાય જે ભક્તિ માળની સદે મોરમ પહોંચે છે એના આત્મને મંદિર ઓરમ પહોંચે છે એના આત્મને મંદિર પોતે પહેરીને અમને પહેરાવે છે. પોતે પહેરીને અમને પહેરાવે છે.
વિકસિત કળીઓ ખીલાવે છે. વિકસિત ઘડીઓ ખીલાવે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. સર્વાત્મન શુદ્ધ સ્ફટિક સમાયનમાં સર્વાત મન શુદ્ધ સ્ફટિક સમાય નમ. જ્યારે ચાહું ત્યારે જોઈ લઉં છું. જ્યારે ચાહું ત્યારે જોઈ લઉં છું. ગરદન ઝુકાવીને મારા જ હૃદયામાં ગરદન ઝુકાવીને મારા હૃદયમાં દાદાજીના દર્શન કરી લઉં છું. દાદાજીના દર્શન કરી લઉં છું. વ્યાપક ને વ્યવસ્થિત ખોળે છે. વ્યાપક ને વ્યવસ્થિત ખોળે છે. દિવ્ય ચક્ષુ એની લાહણી ઢોળે છે. દિવ્ય ચક્ષુની લાણી ડોળે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. જય સચ્ચિદાનંદ મંત્રના પુષ્પોની જય સચ્ચિદાનંદ મંત્રના પુષ્પોની અવિચ્છિન્ન માળા પહેરાવે છે. અવિચ્છિન્ન માળા પહેરાવે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે 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 છે. જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. आइए જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. में लेने को है की ऑफिस आगे देखते हैं. જય दूर केवी रीते छे पासे केवी रीते छे. પદ્મા કહે છે ને કે દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. તો રિલેટિવની અંદર સમજો અમારે અમદાવાદથી આગળ આવવાનું થયું તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું હોય તો કેટલી વસ્તુની જરૂર પડે. બાય ટ્રેનની જરૂર પડે, કાં તો બસની જરૂર પડે, બધી જ વસ્તુની જરૂર પડે. એના સિવાય એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ માણસ જઈ ના શકે. પરંતુ આપણે જ્ઞાન એવું છે ને કે શુદ્ધાત્મામાં જવું હોય તો કોઈ વસ્તુની જરૂર પડે તમારે? કોઈ સાધનની જરૂર ના પડે. ખાલી હું શુદ્ધાત્મા છું એવું બોલીએ ને તરત જ આપણે ક્યાં આવી જઈએ? દાદાની પાસે શુદ્ધાત્મામાં આવી જઈએ સીધા. ઇઝીમાં ઇઝી વસ્તુ આ જ્ઞાન થકી આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય. બીજું કશું જ કરવાનું. બાકી રિલેટિવમાં જો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ધકપક કરવાની હોય ને તો કેટલી વસ્તુની સામાનની જરૂર પડે, પૈસાની જરૂર પડે, ટાઈમની જરૂર પડે, બધાની જરૂર પડે. પરંતુ શુદ્ધાત્મામાં જવા માટે ના કશો ખર્ચો થાય, ના કશો ટાઈમ બગડે, ના કશી મહેનત થાય. આપણે બહાર બધી જગ્યાએ મહેનત કરી શકીએ છીએ પણ શુદ્ધાત્મામાં જવા માટે ખાલી ચાંપ જ દબાવવાની. જે ઉઠ્યા ત્યારથી ભાઈ હું શુદ્ધાત્મા છું ને આ ફાઇલ નંબર 1 એનું કામ કરશે. એટલું કરે એટલે સીધા આપણે ક્યાં આવી જઈએ? પોતાના સ્વપદમાં આવી જઈએ. આટલું સરળ વિજ્ઞાન આપણે દાદા ભગવાન થકી પ્રાપ્ત થયું છે. પરંતુ આપણે જે અનાદિનો અભ્યાસ છે ને બધે દોડધામ કરવાની એ હજુ છૂટતો નથી. એકદમ ઇઝીમાં ઇઝી. ખાલી હું શુદ્ધાત્મા છું એટલું જ બોલીશું ને તરત જ પોતાના સ્વરૂપમાં. એટલે સવારે આપણે દિનચર્યા જ્યારથી ઉઠીએ ત્યારથી અંદર
ચાંપ દાબી દેવાની કે ભાઈ ઉઠનાર તે હું નથી. ઉઠનાર કોણ છે? તો કે ફાઇલ નંબર 1 જે સૂઈ ગયેલો એ ઉઠ્યો છે, હું ઉઠ્યો નથી. એમ એક એક ક્રિયાની અંદર આપણા જ્ઞાનનું એપ્લિકેશન કરતા જઈશું ને તો એનો આપણને સ્વાદ આવતો જશે. શું આવતું જશે? એનો સ્વાદ આવતો જશે. જેમ બિઝનેસની અંદર માણસ પૈસા કમાતો હોય ને તો એને વધારે 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 દોડવાને થાક જ ના લાગે કે લાગે થાક? એને કશો થાક ના લાગે. સમજાય ને? એમ આની અંદર પણ જેમ જેમ પોતાના સ્વરૂપનો અંદર ટેસ્ટ આવતો જશે ને, આ જ્ઞાનનો સ્વાદ આવતો જશે ને, એમ અમે એક વાત કહે ને સ્વાદ પડી જવો જોઈએ, રસ પડવો જોઈએ. અને રસ પડશે ને પછી આપોઆપ આ પ્રકૃતિ એની રીતે જ બધી દોડધામ કરતી થઈ એ તરફ એનું જ્ઞાનનું મંડાણ ચાલુ થશે. હા ना ना आ जाएगा एक ही है बाकी ये सब लोग तो समझते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी में बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। हाँ है। हिंदी में दीपकानंद जी थोड़ा समझाएंगे, मेरा थोड़ा हिंदी कच्चा पक्का है ऐसा है. दूसरा दूसरी बात है ये मालूम तो आता है ना? हाँ आवड़े છે ને. हाँ वो थोड़ा थोड़ा मैं ट्रांसफर करके आपको बता दूंगा ऐसा है. हाँ તો કે આ 5 આજ્ઞાની ગોઠવણી આપણે ધીરે ધીરે કરતા જઈશું ને તો એની અંદર આપણને રસ પડતો જશે. આ પ્રકૃતિ કેવી છે કે બહારનું જે કંઈ પણ કાર્ય છે ને એ ઓટોમેટિકલી એની અંદર લઈને જ આવેલી છે. એ કરે જ રાખશે. સવાર ઉઠશો ને એટલે અંદર કહેવું નહીં પડે તું બ્રશ કર, અને જાતે ઉઠશો એટલે સીધું બ્રશ લઈ જ લેશે. તો આપણે પુરુષાર્થ શું કરવાનો છે? તો કે બ્રશ કરે છે એનાથી હું જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. બસ એટલી ચાંપ દબાવવાની છે. ખાલી શું કરવાનું છે? એટલે જેમ રૂમની અંદર આવીએ તો લાઇટ કરીએ પછી બધી ક્રિયાઓ નથી કરતા એના પ્રકાશમાં, તેમ સવારે ઉઠીએ તરત જ એને ચાપ દબાઈ દેની કોઈ ઉઠનાર તે હું નથી, હું શુદ્ધાત્મા છું. એમ કરતાં કરતાં આ જ્ઞાનનો જેટલો જેટલો આપણે અભ્યાસ કરીશું એટલો એટલો એનો સ્વાદ આવતો જશે. સમજાય ને આપણને? તો બધા અભ્યાસ પોતપોતાની રીતે કરતા જશે, પણ એક એની શરૂઆત કરો ને ઉઠીએ ત્યારથી જ એની શરૂઆત કરી દે. જેમ બિઝનેસની અંદર હોય છે તો માણસને તો આગલી રાત તે સૂઈ ગયો ને ત્યારથી એનું પ્લાનિંગ કરે કે ભાઈ સવાર 6 વાગે ઉઠીને મારે આ કરવાનું છે, આનું આ કરવાનું છે, આનું આ કરવાનું છે. તો આપણે તો એટલું બધું નથી કરતા, પણ સવાર ઉઠીએ ત્યારથી પહેલાં પહેલું ભાઈ કે ઉઠનાર તે હું નથી, જે સૂઈ ગયેલો એ ભાગ જ ઉઠ્યો છે. હું તો કાયમનો જાગતો ને જાગતો એવો શુદ્ધાત્મા છું. એમ કરી કરીને પછી નાસ્તા પર આવીએ તો કે આ બધી વસ્તુઓ આપણને કોણે ભેગી કરી? તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ. આમ આપણને લાગે કે ભાઈ આ એકની એક રોજ તમે ખાખરાને આપો છો, રોજ ખાખરાને આપો છો, તો એ એક જ્ઞાન આપણે બહારની ક્રિયા તો ઓટોમેટિકલી બધી ચાલતી જ રહેવાની છે. બહારની ક્રિયાઓ ઓટોમેટિકલી જે આપણે લઈને આવેલા છે એ ચાલતી જ રહેવાની છે. તો આપણે શું કરવાનું છે? તો આપણે એક સમયે જ્ઞાનનું એપ્લિકેશન કરવાનું છે કે ભાઈ આજે વ્યવસ્થિત મને આટલી વસ્તુ ભેગી કરી છે. સમજાય ને? એક અંદરની ભાષા અને બહારની ભાષા. તો કે અંદરની ભાષા ઓટોમેટિકલી બોલાતી જ જશે. દરેક સંજોગો આવશે ને એ દરેક સંજોગોની અંદર એ ભાષા અંદર બોલ જ કરશે, અને એની સામે આપણે આ જ્ઞાન ભાષાનો ઉપયોગ કરવાનો છે. શું કરવાનું છે? આ જ્ઞાન ભાષાનો. દરેક ક્રિયાને હું જાગ્યો, હું ઉઠ્યો, હું ચાલ્યો એ દરેક વખતે થશે. તો એ વખતે આપણે અંદર આ જ્ઞાન ભાષા ઉપર કહે તું ઉઠ્યો નથી. ઉઠ્યો કોણ છે? તો કે ફાઇલ નંબર 1 ઉઠી છે. તું ચાલ્યો નથી. ચાલે છે કોણ? તો કે ફાઇલ નંબર 1 ચાલે છે. તો કે એ જ્ઞાન ભાષાનો ઉપયોગ કરીશું ને તો એનો આપણને બોજો નહીં રહે. નહીં તો આખો દિવસ આપણે મારે કરવું, હું કરું છું, મારે દોડવાનું છે, મારે ખાવા બનાવવાનું, મારે આ કરવાનું, મારે આને એટેન્ડ કરવાના, તેમ કરતાં કરતાં એનો બોજો રહ્યા કરે. પરંતુ આ જ્ઞાન ભાષાનો ઉપયોગ કરીશું ને તો ધીરે ધીરે એનો બોજો નહીં રહે આપણને એક એક વસ્તુનો. આપણે દાખલા તરીકે અહીંથી ફેક્ટરી ગયા તો ફેક્ટરી તો ગાડી ગઈ છે, પરંતુ અંદર રહ્યા જ કરે કે હું ફેક્ટરી ગયો, હું ફેક્ટરીથી પાછો આવ્યો. હવે ગઈ છે ગાડી અને આવા જેવી ગાડી આપણે અંદર બેઠેલા છે, પણ એ અંદર કીધું કે હું ગયો ને હું આવ્યો તો તરત જ અંદર એનો બોજો રહ્યા કરે અંદર એક એક અવસ્થાની અંદર. તો કે ખાલી એટલું ઇઝી આપણને જ્ઞાન આપ્યું કે બહારની કોઈ ક્રિયા કે કશું હલાવવાની જરૂર નથી, પણ એ વખતે આપણી જે સમજણ એ સમજણ જ ખાલી ગોઠવ કરવાની છે. દાદા ભગવાન કહેતા ને કે આ જ્ઞાન તમે ગોઠવ કરજો, કારણ કે આ કૃપાથી મળેલું છે. શેનાથી મળેલું છે? આપણને આ કૃપાથી મળેલું છે. સમજાય ને? બાકી રિલેટિવની અંદર તો કેટલી તપસ્યાઓ કરે ત્યાર પછી એને શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય બેસે, બાકી શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય પણ બેસે અને મહાત્માઓને આપણને સહેજે જે કૃપાથી લક્ષ્ય બેઠું છે. સમજાય ને? કૃપાથી લક્ષ્ય બેઠું છે. તો હવે ધીરે ધીરે જ્ઞાનની આપણે જેટલો અભ્યાસ કરતા જઈશું એટલી આપણી જાગૃતિ વધતી જશે. જાગૃતિ વધતી જશે એટલો આપણો અનુભવ પાકો થતો જશે. શું પાકો થતું જશે?
અનુભવ પાકો થતો જશે. સમજાય ને? તો કે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણે શું કરવાનું છે? આ એક જ વસ્તુ ઘૂંટ કરવાનું છે. એક જ વસ્તુ ઘૂંટ કરવાની છે. સત્સંગની અંદર અમે નિમેશ જોધપુરમાં પેલી શિબિર હોય ને, તો શિબિરની અંદર બધા ક્લાસીસ હોય, ગ્રુપ મુજબ બધા ક્લાસીસ હોય. એટલે દરેક આપતા પુત્રોને અલગ અલગ ક્લાસીસમાં વારા ભરતી મોકલે. એટલે અમારે એક મહેસાણાના ક્લાસમાં મારે મિનેશ આનંદજીને જવાનું થયેલું એવું છે. એટલે આપણે એમને કીધું ને કે ભાઈ પેલો ચાનો દાખલો છે ને આપણો, કે ભાઈ તમને ચા બનાવતા આવડે કે ના આવડે? તો મિનેશ આનંદજીએ પૂછ્યું કે તમને ચા બનાવતા આવડે કે ના આવડે? પેલા ભાઈ કહેવાય 3 દિવસથી બધા એકનું એક જ સમજાય કરે છે કે કઈ નવું હોય તો કહો તમે કે. રોજ કે આ બધા આવે ચાનું જ કે કરે છે. એટલે મિનેશ આનંદજી કે ચા બની ગયો તો કે ભજીયાનું કહું તમને, પણ કે વસ્તુ તો આની આ જ છે. એટલે જે જ્ઞાન આપ્યું છે એ જ જ્ઞાનને આપણે ઘૂંટ કરવાનું. નવું કશું નહીં આવે, પરંતુ આપણને જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, 5 આજ્ઞાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, એ જ વસ્તુ આપણે ઘૂંટ કરવાની છે. જેમ સ્કૂલની અંદર હોઈએ આપણે તો ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં શું કરાવે છે આપણને? 1 to 10 સુધી શીખવાડે. આખું વર્ષ સુધી એ ઘૂંટાઈ કરે છે. એમ આપણને પણ આ જે જ્ઞાન આપ્યું છે ને, એ 5 આજ્ઞા આપણે આખો દિવસ એ જ ઘૂંટ નવું કશું આવશે નહીં. પછી જે પણ નવું શું છે, નવા અનુભવો થશે આપણને. આ જ્ઞાન થકી આપણને નવા અનુભવો થશે. જ્યારે એકની એક વાત અથવા એકની એક પદ આપણને નવું લાગે ને, ત્યારે આપણે સમજવાનું કે આ જ્ઞાનની અંદર આપણે પ્રગતિ કરી છે. બાકી આપણને એવું લાગે કે આ એકની એક જ વાત કરે છે. એકની એક વાત નથી, પરંતુ આપણને નવી લાગવી જોઈએ. એકની એક વાત જ્યારે નવી લાગશે ને, ત્યારે એમ સમજવાનું કે આપણે ઇન્ટરનલી કંઈક પ્રગતિ થઈ છે એમ. સમજાય ને? તો કે આ જ હવે આપણે બધા મહાત્માઓને શું કરવાનું છે? સિમ્પલ 5 આજ્ઞા જે આપી છે એના પુરુષાર્થમાં જ આપણે આખું સમય અને બધું ટાઈમ કાઢવાનું છે. અને અઘરું નથી, એ પાછું એ અઘરું નથી. ખાલી એની ગોઠવણી જ કરવાનું છે. શું કરવાનું? ખાલી એની ગોઠવણી જ કરવાની છે. અને ગોઠવણી આપણે એક વખત થઈ જશે. જેમ વ્યવહારની અંદર આપણે કેટલી બધી વસ્તુની ગોઠવણી કરીએ છીએ. રસોડાની અંદર હોય તો તમારે નથી બધું આવવાના હોય ત્યારથી ખબર પડી જાય ને કે ભાઈ આ બધા લોકો આવવાના છે, તેનું શાકભાજી લઈ આવે, આ લઈ આવે, તે લઈ આવે, બધું એની રીતે એક્વાયર કરી દે. સમજાય ને? તો એની રીતે સેમ આ વસ્તુ જ્ઞાનની ગોઠવણી કરવાની છે. આ પ્રકૃતિની અંદર સવારથી કે સાંજ સુધી આ શું કરે છે એને ખાલી જોવાની છે. ફાઇલ નંબર 1 ઓટોમેટિકલી એ બધું કરે. જેમ તમારો ફોન આવશે ને કે ભાઈ 4 જણ જમવા આવવાના છે, તો ઓટોમેટિકલી આ પ્રકૃતિ અંદર વર્ક કરવાની ચાલુ થઈ જશે. સમજાય ને? કામવાળાને કહેવાનું છે તેને કહી દેશે, આને કહી દેશે, આને કહી દેશે. ઓટોમેટિકલી જે વર્ક કરશે એને કંઈ કહેવું નહીં પડે કે ભાઈ તો હવે કામવાળાને ફોન કર, કાને ફોન કર. જેવું આવશે ને, કારણ કે લઈને જ આવેલું છે. આ પ્રકૃતિની અંદર બહારના બધો જે કંઈ પણ વ્યવહાર છે ને, એ બધો ઓટોમેટિકલી લઈને જ આવેલો છે. અને કહેવું જ નહીં પડે કોઈ પણ વસ્તુનું. તો કરવાનું જે શું આપણે, તો કે એ ઉકલતા વ્યવહારની અંદર આપણે આપણી જ્ઞાન દ્રષ્ટિ એપ્લાય કરવાની છે. શું કરવાનું છે? ઉકલતા વ્યવહારની અંદર આપણે આપણી જ્ઞાન દ્રષ્ટિ એપ્લાય કરવાની છે કે ભાઈ આ દોડાદોડી કરે છે તે હું નથી. આ ફોન આવ્યો તો વ્યવસ્થિત શક્તિએ ફોન કરાવડાવે છે, મારી પર આવ્યો છે, હિસાબ આવ્યો છે મારો. એ વસ્તુ આપણે જ્ઞાનનું અંદર પાકું એક સંજોગોની અંદર આપણે પાકું કરાતા જઈશું ને, તો એનો આપણને સ્વાદ આવતો જશે. અને એ સંજોગ એકદમ ઇઝીલી અંદરથી પાસ થઈ જશે જ્ઞાન દ્રષ્ટિ એપ્લાયથી. બાકી તો શું થશે? બોજા જેવું લાગશે. શું કામ આવે છે, કેમ આવે છે, કેમ આટલો બધો રોકાશે, આ છે તે છે. હવે હિસાબ વગર એ છૂટવાનું નથી. જ્યાં સુધી હિસાબ છે ત્યાં સુધી. તો દાદા કે હિસાબ તું સંભાવથી નિકાલ કરી નાખ. કે શું કે જે કંઈ પણ આવ્યું છે એ ફાઇલોનો સંભાવથી નિકાલ કરી નાખ. ફાઇલ એટલે શું? ફાઇલ એટલે શું? તો કે જે આપણને પોતાના સ્વરૂપમાં ના રહેવા દે. શું ના રહેવા દે? પોતાના સ્વરૂપમાં ના રહેવા દે. દાખલા તરીકે તમે નક્કી કર્યું હોય કે ભાઈ અહીંથી માર્કેટમાં જવું છે અને દરેકની અંદર શુદ્ધાત્માના દર્શન કરવા છે, એવું તમે અહીંથી નક્કી કરો ને, અને પછી આમ જતા જાઓ અને જેવા ઓળખીતા મળે ને એવું તરત અંદર શું થઈ જાય? જતરી એ ફાઇલ છે આપણી. શું છે કે જે આપણને પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવા દેતું નથી. તો એ વખત એની જાગૃતિ રાખવાની. શું કરવાનું? એ વખત, કારણ કે એની જોડે હિસાબ છે ને, એટલે હિસાબ પ્રમાણે બધો વ્યવહાર થઈ રાખશે. એટલે એવું આપણા ઘરના સભ્યો હોય, દરેક જણ હોય, તે ફાઇલ સ્વરૂપ છે. કારણ કે એમને આપણે વ્યક્તિ તરીકે જ જોવાય છે. હમણાં વાઇફ હોય તેને વાઇફ તરીકે જ જોવાય છે. સમજાય ને? તો કે શુદ્ધાત્મા તરીકે આપણે જેટલા જોતા જઈશું ને, એટલા આપણે પણ શુદ્ધાત્મા
થતા જઈશું એમ. એટલે દાદા ભગવાનનું એટલું ઇઝી વિજ્ઞાન છે કે એની અંદર આપણે આપણી ગોઠવણી જ રાખવાની જરૂર છે બસ. અને ગોઠવણી એક એક સંજોગોની અંદર આપણે કરતા જઈશું તો એ દરેકે દરેક સંજોગોનો આપણને લાભ મળશે. સમજાય? નીકળ આખો જે સાયકલ પ્રવાહ છે એ શ્વાસોશ્વાસ શું થયું છે? વપરાય જ રહ્યા છે ને? વધે છે કે ઘટે છે? શ્વાસોશ્વાસ વધે છે કે ઘટે છે? ઘટે છે ને? તો કે એ શ્વાસોશ્વાસ જેટલા જેટલા ઘટે છે, પરંતુ એની અંદર આપણે જેટલી આ જ્ઞાન અને આજ્ઞાની જાગૃતિ રાખીશું એટલું આ જ્ઞાન આપણે માટે અનુભવ સ્વરૂપ પાકું થતું જશે. સમજાય? અત્યારે જ્ઞાન છે, સમજણ છે, બધું જ છે, પણ એનો સ્વાદ કેમ નથી આવતો? તો કે એ અનુભવમાં આપણે અભ્યાસમાં થોડું થોડું અંદર એપ્લાય કરતું જવાનું રોજબરોજના વ્યવહારની અંદર, તો એ પાકું થતું જશે. શું થતું જશે? એ પાકું થતું. અત્યાર સુધી આપણને પેલો વ્યક્તિ કરતા દેખાતો હતો. કોઈ માણસ આને મારું બગાડ્યું, આને મારું આ કર્યું, આને મારું આ કર્યું. સમજાય ને? તો હવે શું લાગશે કે ભાઈ એ કરતા નથી, વ્યક્તિ કરતા નથી, પરંતુ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. સમજાય ને? એટલે એ અંદર જ્ઞાન પાકું થતું જશે. દુકાને બેઠા હોય, આપણે પેઢી પર બેઠા હોય તો પહેલાં હંમેશા કસ્ટમર દેખાય પહેલી દ્રષ્ટિથી, પણ આપણે જ્ઞાન દ્રષ્ટિ વાપરી હોય કે આ શુદ્ધાત્મા જોવા હોય તો કસ્ટમર ના પાડવાનો છે કે મારા શુદ્ધાત્મા ના જોશો તમે? હા, એને ખબર ના પડે. પણ આપણે આપણી કમાણી ચાલુ કરવાની કે બહારથી વ્યવહારની આ ભાગ છે એ કસ્ટમર જોડે એની રીતે વ્યવહાર કરશે, પરંતુ મારી જે આંતરિક સમજણ છે તો કે એ શુદ્ધાત્મા છે, અને જે હિસાબ હશે એના આધારે ધંધો એની માટે પ્લસ માઇનસ કરશે એને. પરંતુ આપણને શું અંદર બુદ્ધિ બધું બતાડ કરે અંદર. સમજો ને કે મારો કસ્ટમર બીજે જતો રહેશે, અહીં ના જવો જોઈએ, અહીં ના જવો જોઈએ, એ બધું બતાવે કે ના બતાવે? બિઝનેસ પર બેઠા હોય તો આપણો જો કોઈ કસ્ટમર હોય ને એ ભૂલથી બીજાની દુકાને જાય ને તો શું થાય? આપણને શું થાય? આપણી ઊંઘે થઈ જાય ભાઈ કેમ ત્યાં ગયો હશે? તો એ બધા આપણે જ્ઞાન દ્રષ્ટિ ઉપયોગ કરવાનો. શું ઉપયોગ કરવાનું? જ્ઞાન દ્રષ્ટિ. બહારથી વ્યવહારથી બધા પ્રયત્નો કરવાના કે ભાઈ એને કંઈ તકલીફ થતી, એને સર્વિસમાં કંઈ તકલીફ થઈ, ભાવમાં કંઈ તકલીફ થઈ, એ તો બધું જે વ્યવહારથી થતું હોય કરવાનું, પરંતુ અંદર આપણી સમજણ જ્ઞાને કરીને જીવવાનું કે ભાઈ વ્યવસ્થિતમાં હિસાબ હશે એ પ્રમાણે એ બધે ત્યાં જાય છે. નહીંતર તો શું થાય કે એ આપણને બળતરા અંદર રહ્યા જ કરે. જ્યાં સુધી એ પાછો ના આવે ને ત્યાં સુધી અંદર રહ્યા જ કરે. બીજાની દુકાને જે ચડતા જોયો ને ત્યારથી આપણને ઉપાધિ ચાલુ થઈ જાય કે ભાઈ આ ત્યાં કેમ ગયો હશે? સમજાય ને? એટલે બહારના પ્રયત્નો તો બધા રાખવાના, પણ અંદર આપણી સમજણ આ જ્ઞાને કરીને જેટલા જીવતા જઈશું ને એટલું અંદર આપણે બળતરા નહીં રહે. અને બળતરા નહીં રહે ને તો શું છે કે આખો એ બિઝનેસનું હોય કે કોઈ પણ ફિલ્ડ હોય તો આપણે જે વ્યવહાર કરો ને એ ચાહે એ કસ્ટમર જોડે હોય કે આપણે જેવી સેમ. અત્યારે તો આપણે શું છે કે આપણે જે પ્રોડક્ટ બનાવતા હોય ને એ જ પ્રોડક્ટ જો બીજો બનાવે તો આપણે કોમ્પિટિટર થઈ ગયું એવું આપણી માન્યતા છે. હવે ખરેખર કોમ્પિટિટર છે ભાઈ, એ તો એ પ્રોડક્ટ એ જ બનાવે છે અને એ પ્રોડક્ટ આપણે બનાવીએ છીએ, તો કોમ્પિટિટર થોડો થયો. પરંતુ આપણને વ્યવહાર એવું જ્ઞાન સૂચવે કે ભાઈ આપણો કોમ્પિટિટર છે, એ આપણો કોમ્પિટિટર નથી. સમજાય? વ્યવહારનું જ્ઞાન આપણને બધા 4 જણી કહે બી ખરા કે ભાઈ એ તારો કોમ્પિટિટર આવ્યો, તારો આવે. ભાઈ કોમ્પિટિટર નથી, એ બી અંદર માણસ છે ને એની અંદર પણ શુદ્ધાત્મા છે. એ તો બંનેના જે હિસાબ હોય એ પ્રમાણે કસ્ટમરો એમને ત્યાં જશે. એવું જ છે ને કે અલગ છે? એવું જ છે. પણ આપણી માન્યતાઓ જે વ્યવહારિક માન્યતાઓ આપણે લઈને આવ્યા હોય ને તો હંમેશા એની જોડે આપણો વ્યવહાર કોમ્પિટિટર જેવો થશે અંદર. આપણે એને કઈ વાત ના કહી, આવો બી ના બોલાવીએ ત્યાં સુધી હોય, આવો પણ ના કહી મારે ફેક્ટરી તું આય એવું બી ના કહીએ. એવું છે કારણ કે કોમ્પિટિટર દેખાય છે આપણને. શું દેખાય છે? કોમ્પિટિટર દેખાય. ખરેખર છે ને એને તો આપણે કશું બગાડ્યું બી નથી, પરંતુ આપણી જે લૌકિક માન્યતા છે ને એના આધારે આપણને અંદર રહ્યા કરે ને એના માટે દ્વેષભાવ રહ્યા કરે, આ રહ્યા કરે, બધું અંદર રહ્યા કરે. તો કે આ જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી આપણે જેટલો ઉપયોગ કરીશું ને તો એ દરેકે દરેક, કારણ કે દાદાનું જ્ઞાન એવું નથી ખાલી ઘરમાં બેસી રહેવાનું છે. આપણે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં જઈશું, કોઈ પણ જગ્યાએ જઈશું ને તો એ દરેકે દરેક જગ્યાએ આ જ્ઞાનની એપ્લિકેશન કરીશું ને તેનો સ્વાદ આપણને આવશે ને અંદરથી આપણે મુક્તતાથી જીવી શકીશું. નહીંતર તો એટલા બધા બંધનો ને એટલું બધું આપણને રાગદ્વેષ થઈ રાખે ને આખો દિવસ, તો આમ છેલ્લે એમ થઈ જાય કે આ શું છે, કેમ સ્વાદ નથી આવતો. પરંતુ ઉપયોગ કરીશું ને તો એનો એટલો બધો સ્વાદ આવશે આપણને કે પછી જ્ઞાનની બહાર નીકળવાની ઈચ્છા નહીં થાય. કારણ કે દરેક જણ, દરેક વ્યક્તિ જોડે આપણો વ્યવહાર એટલો બધો આમ પ્રેમપૂર્વકનો થઈ જાય કે જેથી કરીને એ આપણને દુશ્મન જેવો ના લાગે.
કારણ કે આ જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી જેટલા આપણે જોતા જઈશું ને એટલો નહીંતર તો કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ તમારે આ જ બહારની દ્રષ્ટિથી જોઈશું ને તે દ્રષ્ટિ આખડી નકરી બળતરાવાળી જ છે, બધી નકરી બળતરાવાળી. કોઈ પણ જગ્યાએ શાંત થાય એવી પેલા જ્ઞાન દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ, એનો પ્રયોગ, અને એકદમ ઇઝીમાં ઇઝી છે. આ 5 આજ્ઞાની જે એપ્લિકેશન કરીને એકદમ સરળમાં સરળ છે. ખાલી આપણે પહેલું ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં એને નક્કી જ કરવાનું છે કે મારે આ 5 આજ્ઞાપૂર્વક આખો દિવસ કાઢવો છે. એટલું નક્કી કરીશું ને ત્યારથી જ અંદર જાગૃતિ ઊભી થશે. જેવું નક્કી કરીશું ને ત્યારથી જ જાગૃતિ ઊભી થશે. અને ઘરના વ્યક્તિથી શરૂઆત કરવાની કે ઘરના સભ્યોની અંદર સવારમાં ઉઠીને આપણે એની અંદર રિલેટિવ રિયલ જોઈ લઈએ કે ભાઈ આ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી વાઇફ છે, વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી આ છોકરા છે, નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા છે. તો કે ઘરના સભ્યોથી શરૂઆત કરવાની અને પહેલાં પહેલો પ્રયોગ આની અંદર કરવાનો. ફાઇલ નંબર 1 ઉપર સૌથી પહેલી જ્ઞાન દ્રષ્ટિ ક્યાં વાપરવાની? ફાઇલ નંબર 1 કે ભાઈ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું હસમુખ છું, નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા. જેટલો પ્રયોગ આ ફાઇલ નંબર 1 ઉપર થશે ને એટલો પ્રયોગ સામેની સાઈડ ઓટોમેટિકલી થઈ જ રાખશે. દાદા ભગવાન કહે કે આખું સાયન્સ આ ફાઇલ નંબર 1 જોડે રાખવાનું અને આની જોડે જ જેટલો પ્રયોગ ગોઠવતા જઈશું આપણે એટલો સામે ઓટોમેટિકલી થશે. એટલે આને જ કહેવાનું કે ભાઈ તું રિલેટિવ છે, હું રિયલ છું. જન્મદિવસ આવે તો કે જે જન્મે છે ને મરે છે એનો જન્મદિવસ છે. હું તો અજન્મા અમર એવો શુદ્ધાત્મા છું. સમજાય ને? એ દરેક અવસ્થાની અંદર આપણે આની જોડે કરીએ ને આને કહેવાનું તું રૂપી છું, બહાર દેખાય એવો છે, અને હું અરૂપી છું. એક જ શબ્દ એક જ વાક્ય બોલીએ ને તો તરત આપણે દરેક આપણે અંદર શુદ્ધાત્માની અંદર આવી જઈએ એવું છે. ખાલી અરૂપી અને રૂપીનું પ્રયોગ રાખીએ ને તો પણ અંદર દેખાય કે ભાઈ આ તમારે સફેદ દેખાવો છો, કાળા દેખાવો છો, હાથ છે, પગ છે, આકાર છે, તમે રૂપી છો. અને શુદ્ધાત્મા હું અરૂપી છું. એક વસ્તુ ત્યાં છૂટા પાડીશું ને તો બી અંદર એક આખા બોડી પાર્ટથી સવારથી સાંજ સુધી લો ને કે ભાઈ તમે વાળ છો, તમે રૂપી છો, હું અરૂપી છું. મોઢું છે, તમે રૂપી છો, હું અરૂપી છું. એમ એક વસ્તુનો આપણે પ્રયોગ કરીશું ને તો અંદર આપણને એનો છૂટાપણાનો અનુભવ થઈ રાખશે અંદર. સમજાય ને? તો આ બધા પ્રયોગો અંદર ગોઠવવાના. એટલે ફાઇલ નંબર 1થી આનથી શરૂઆત કરવાની. અહીંથી જેટલા પ્રયોગો થશે ને પછી આપોઆપ બહાર દેખાવાની શરૂઆત થઈ જ જાય. એટલું ઇઝી આ દાદા ભગવાનને આપણને આપ્યું છે. ખાલી એનો ઉપયોગ કરવાનું છે. એનું શું કરવાનું છે? ઉપયોગ કરવાનો છે. જેમ ફોન લાયા હોય તો ફોનનો ઉપયોગ કેવો તરત કલાકમાં કે અડધો કલાકમાં ચાલુ કરી દે છે, ડેટા ટ્રાન્સફર કરવાનું ને બધું. અને જ્ઞાનનો ઉપયોગ ક્યારે કરીશું આપણે? જ્ઞાન તો કિંમતી એટલે ભાઈ તિજોરી મૂકી રાખવું પડે ને. બધા કહે છે ને જ્ઞાન અમૂલ્ય છે. તિજોરી જેટલું વાપરીશું એટલો એનો સ્વાદ આપણને આવતો છે. એમ દરેક સંજોગોની અંદર હવે આપણે આ જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી જ મારે જીવવું છે એ અભ્યાસ અંદર પાકો કરવાનો. પહેલાં દાદા ભગવાન પ્રાર્થના કરવાની કે આપની 5 આજ્ઞા મુજબ જ મારું બાકીનું જીવન જાય એવી આપ મને શક્તિ આપે. જેવું નક્કી કરીશું ને ત્યારથી અંદર લાઇટ પડવાનું ચાલુ થઈ જશે. સમજે? પહેલું નક્કીપણું મેઇન વસ્તુ છે. કંઈ પણ વસ્તુની અંદર પહેલું શું છે? નક્કીપણું મેઇન વસ્તુ છે. એ પહેલું નક્કી કરીશું રોજ 5 વખત મારે આપની 5 આજ્ઞા મુજબ જ મારું આ જીવન આખા દિવસનો વ્યવહાર જાય એવી આપ મને શક્તિ આપો. એટલે નક્કી કરીશું ને તો અંદર લાઇટ આપવાનું ચાલુ કરીશું. સમજાય ને? આપણે શું છે નક્કી જ નથી કરતા કશું. સીધો સવાર ઉઠ્યું અને સટાસટ પેલું જે બહાર નક્કી કરેલું છે એ પ્રમાણે થાય જ. વ્યવહારમાં તો બધું નક્કી કરેલું જ હોય. એટલે કોઈને ત્યાં લગ્નમાં જવાનું હોય, કોઈને ત્યાં ફંક્શનમાં જવાનું હોય, બધું ફિક્સ હોય કે ત્યાં તો પહોંચવાનું જ છે મારે. એવી રીતે આની જ્ઞાનની અંદર પણ શરૂઆતના સ્ટેજમાં શું એ નક્કી કરવું પડે કે ભાઈ જો ફાઇલ નંબર 1ને કહેવાનું ભાઈ તારે ઉઠીને સવારમાં બધાને શુદ્ધાત્મા જોવાના છે. દરેક આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ તારે દરેક જગ્યાએ જોવાનું છે. સમજાય? જે કોઈ ફાઇલો આવે છે એનો સંભાવ નિકાલ કરવાનું તારે નક્કી કરવાનું છે. સમજાય ને? તો એ અંદર કહેતા જઈશું ને ફાઇલ નંબર 1ને તો ધીરે ધીરે કરીને કરતું જશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે આટલું સરળ જ્ઞાન છે. બરાબર? હવે તમારે કંઈ પ્રશ્ન કે એવું હોય તો દીપક આનંદજીને પૂજ્ય વાતચીત કરશે આગળ. બરાબર?
बोलो। पैसा तो जेब में है, उसका तो उपयोग करते ही रहते हैं। पैसा जेब में है, पैसा का उपयोग करते ही रहते हैं। लेकिन यानी संसार लक्ष्मी का उपयोग करते रहते हैं। ये मोक्ष लक्ष्मी का उपयोग जितना करेंगे उतना मोक्ष स्वरूप हम होते जाते हैं। ऐसा है। जैसे लक्ष्मी का उपयोग करते हैं तो उसका लाभ भी हमें मिलता है, ऐसे मोक्ष लक्ष्मी का उपयोग करेंगे तो मोक्ष स्वरूप होते जाएंगे। मोक्ष स्वरूप कृपा से हुए, मोक्ष स्वरूप अनुभव से होना है। अनुभव से होने का मतलब क्या है? ये क्रिया वाले जगत यानी क्रिया वाला ये नामधारी है ना, उससे मुझे कोई लेना देना है ही नहीं। कोई किसी प्रकार का कोई लेना देना है नहीं। सही है कि गलत है? सही है। लेकिन वही तो उलझाता रहता है। अगर ये नामधारी उलझाता नहीं है तो कोई दूसरा नामधारी उलझाता है। नहीं होता है ऐसा? ये बात है। ज्ञान दृष्टि का उपयोग इसको कहते हैं। ऐसा है ना, मैं हर बार ऐसा सोचता हूँ कि हमारी वाणी में दादा के वचन निकलेंगे, यानी हमने जो दादा को सुना है या आपतावाणी में सुना है या कहीं भी सुना है, वो आपके ध्यान में आएगा। लेकिन फिर उसका मतलब क्या है, मतलब समझना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये वचन हमारे नहीं है। जो दादा भगवान ने ज्ञान से जिए और ज्ञान से जीकर उन्होंने उनके ये वचन निकले, निकाले नहीं, निकले, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप होकर जिए और इसीलिए उनकी वाणी की कीमत है। और अनुभव वचन इसीलिए कहे, इसीलिए वो अच्छे तो लगेंगे। और हमारे जीवन में जैसे हम उपयोग करते जाएंगे तो वही अनुभव हमें होगा जो दादा भगवान को हुआ, जो महावीर भगवान को हुआ, जो राम भगवान को हुआ, जो कृष्ण भगवान को हुआ, जो ऋषभदेव भगवान को, सब बड़े पुरुषों का अनुभव एक ही। और वो क्या है पता है? अनुभव एक कैसे होता है? मैं अलग हूँ यानी असंगता का अनुभव वो सभी का एक होता है और एक सरीका होता है। एक सरीका, कोई फर्क नहीं। आपकी प्रकृति क्या है वो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी प्रकृति में आपको असंगता का अनुभव हुआ, वो सबका कॉमन है। बोलो। मोक्ष का सबका अनुभव कॉमन होने के कारण सभी तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा एक तरीके जैसे ही दिखती है, पर एक तरीके होती नहीं है। वो नीचे वो लांछन लगाए है। लांछन से पहचान होनी चाहिए, यानी किसी का नाम ऐसा लिखा है तो ऐसी तरफ से पहचान होनी चाहिए कि उनको देखकर पहचान होनी चाहिए। देखकर, आखिर में देखकर होता है। इसीलिए क्रिया के संबंध में दादा भगवान के वचन ऐसे निकले हैं, हर एक संयोग असर वाला है और वह असर छोड़ के जाता है, असर करके जाता है। तो इसीलिए कहा सतर्क रहो, जागृत रहो। एक संयोग असर के बगैर का नहीं है। खाना खाया अच्छा लगा, बुरा लगा, सो गए अच्छी नींद आई, बराबर नींद नहीं आई, चलने गए अच्छा लगा, बुरा लगा। ये सभी संयोग में अच्छा बुरा का वो क्या बोलते हैं, सिक्का होता है ना, उसकी दो बाजू है ना, ऐसा कभी ऐसा गिरता है कभी वैसा गिरता है, लेकिन ऐसा ही होता रहता है। ये क्रिया का फल है, क्रिया का परिणाम है।
और वो क्रिया हमने जान लिया कौन करती है, कौन करवाती है, तभी हमें मुक्तता का स्वाद आता है। असर मुक्त, असर के बीच में असर मुक्त, बिल्कुल। और व्यवहार में कभी किसी के ताने खाने ना पड़े। बोलो, पड़ती तो नहीं ना, ताने पड़ते हैं, यानी शिकायत होती है आपकी, तो जानना है कि हमारे व्यवहार में कुछ गलत है, जो दूसरे देख सकते हैं लेकिन हम देख नहीं पा रहे, हम महसूस नहीं कर पाते। मैं तो सही हूँ, आपको गलत लगा वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही है ना, निर्मल जी बोलते नहीं है। बहुत मज़े का विज्ञान हमें मिला है। हमारी दृष्टि तो हमारे व्यवहार, यानी ये नामधारी का व्यवहार और इनके साथ वाले जो जिनके साथ व्यवहार होता है वहीं पर ध्यान रखना है। अभी कैसे जो गाड़ी चलाते हैं ना, वो दूसरे के गाड़ी वाले को नहीं देखते, वो खुद की गाड़ी को देखते हैं, और बगल में जो गाड़ियां हैं वो देखते हैं, और कहाँ जाना है वो देखते हैं। बस जाना तो है, टकराए नहीं वो देखना है। और यहाँ पर टकराव होता है, दूसरे की गाड़ी देखते हैं। ये आदत हमारी दादा के ज्ञान से, आज्ञा के उपयोग से छूटती जाएगी। फिर दूसरे क्या करते हैं, वो जिम्मेदारी के भाग में होगा। जिम्मेदारी का भाग, क्योंकि आप घर पर हो तो ऐसा बोल नहीं सकते टीवी में को जो करना है वो करे, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं? डे टू डे बेसिस पर वो चाहिए नहीं, वो आए नहीं आए या लेट आए तो कुछ कारण होगा, पूछेंगे नहीं तो भी बता देंगे, वो नहीं बता देंगे, अरे आज ऐसा हो गया इसीलिए लेट हो गया। क्योंकि उनका टाइम है, आपको नाश्ता देना 8 बजेगा और 8:30 बजे नीचे आके वो भी परेशान होते हैं। कि यहाँ हमारा काम क्या है, संजोग उलझाता रहता है, क्योंकि वो कर्म का परिणाम है। आज टाइम पर मिला, कल टाइम पर ना मिले, टेस्ट के अनुसार हुआ, टेस्ट के अनुसार नहीं हुआ, वो सब ऐसा अंदर झंझट खड़ी करता ही रहता है संजोग। लेकिन वो संजोग में हमें कैसे स्वस्थ रहना है और सामने वाले को भी स्वस्थ करना है। हमें अच्छा नहीं लगा, वो हमारा कर्म का परिणाम था। आज हर रोज तो अच्छा बनता है, आज ऐसा क्यों बना? नहीं, उनका ध्यान ही नहीं है। अभी उम्र होती जा रही है ना, तो कुछ भूल जाते हैं। जैसे हमारी उम्र हुई नहीं, सामने वाले की उम्र हो गई। ऐसे धीमे धीमे करके। और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि कैसा होना चाहिए। जैसे कि हमें कोई अच्छे लगते हैं ना, तो वो उनका साथ हमें अच्छा लगता है। सो उसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, यू चेरिश समवन्स प्रेजेंस। किसी की उपस्थिति हम चेरिश करते हैं, यानी उसको उनका जीना ही हमारे लिए वो चेरिश करता है। चेरिश को कैसे हिंदी बोलते पता नहीं है मुझे, लेकिन वो बात है। वो वैसे हम सभी का अस्तित्व, उनका उपस्थित होना हम चेरिश करेंगे, क्योंकि अंदर मेरा ही स्वरूप है। नहीं चल के ये मच्छर कहाँ से आ गया, ऐसा करके चिड़चिड़े हो जाते हैं। जैसे हमने किसी का खून पिया ही नहीं है, अब कोई हमारा खून क्यों पिएगा? नहीं, पीने भी नहीं देंगे। ये बात। इसीलिए
ज्ञान मिल गया है, ज्ञान में वृद्धि नहीं होती, ज्ञान में वृद्धि होने वाली भी नहीं है, लेकिन समझ में वृद्धि होने से ज्ञान अनुभव में आता है। और ज्ञान अनुभव में आया उसका मतलब क्या है? कृपा से निशंक हुए समझते जाते हैं, तो समझते समझते हम हमारे जीवन के संयोग में निशंक होते जाते हैं। निशंकता का नाप क्या है या परिणाम क्या है? कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये मेरे क्षेत्र में नहीं हो रहा है। दो दृष्टि से देखने का मतलब ही यह है कि मैं अपने आप को अलग हूँ वो महसूस करूँ, और ये जो असर हो रही है वो मुझे नहीं हो रही है। और ये तो कौन से संजोग में असर नहीं होती है? अच्छा या बुरा लगता ही है, या अच्छा लगता है या बुरा लगता है। अच्छे में बह जाते हैं, बुरे में खो जाते हैं, परेशान होते हैं। अभी उसमें से निकलना है। और उसका परिणाम क्या है? कोई कभी भी हमें देखे, जैसे हम दादा भगवान को कभी भी देखते थे ना, प्रसन्नता पूर्ण होते थे। कभी भी देखो उनकी उनकी क्या बोले, सेहत तो कभी भी अच्छी नहीं थी। दांत है ना, वो हिलते थे। अभी हिलते हुए दांत में आप एक बार का खाना खाना ना, आप सोचो क्या परेशानी है, हम सोच भी नहीं सकते। उनके पैर में वो खिल्ला लगता रहता था, वो जूते में से लगता रहता था, उन्होंने उसको निकाला नहीं। लेकिन फिर कभी जैसे पैर रखा होगा तो किसी ने देखा तो बोला दादा ये तो ऐसा है। उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो जिन्होंने देखा ना उसको वो जूते को टोक के फ्लैट कर दिया। हमें इसे क्या समझ में आता है या हमें क्या समझना चाहिए? हम किसी न किसी प्रकार से पुद्गल के सुख के पीछे जाते हैं, उसको प्राप्त करने की हम करने का हमारा एक प्रयत्न होता है। कई बार वो जान तुल्य प्रयत्न होता है, ऐसा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मरण तुल्य प्रयत्न होता है, करेंगे या मरेंगे जैसा बोलो, उसके लिए हमारा प्रयत्न होता है। तो दादा ने कभी भी अगर पुद्गल दुख आता है तो उसको कभी छेड़ा नहीं उन्होंने। ये दांत की बात, वो ऐसा कुछ संजोग आ गया था, किसी ने देख लिया कुछ थोड़ा काला काला कुछ है ऐसा करके, तो डॉक्टर के पास ले गए। और तो और ऐसा बताया कि दादा ये सब हम निकाल देंगे और इम्प्लांट कर लेंगे। अभी दादा को वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डेंचर कैसे पहनाएंगे हर बार वो तो निकालो ये करो, उनके लिए तो झंझट है। तो बोले दादा इम्प्लांट कर देंगे। तो दादा ने बताया हम बताते हैं, अभी हमको जाना है ना, अभी काम नहीं होगा है। बोलो, वो बताया नहीं और फिर कभी गए भी नहीं उधर वो बोलते रहे, आते रहे, आते हैं अभी आते हैं। क्यों बताया? बोले कि दादा का जो हास्य है ना, हंसते हैं तब, तो लोगों को एक निधि ध्यान हो गया है। अभी आप सोचो कि उनके दांत निकाल दिए और डेंचर लगा दिया, इम्प्लांट किया, तो इम्प्लांट करने पर उनकी जो हंसी है, स्माइल है, टोटली बदल जाएगी। और हमने देखा है जिन लोगों ने ऐसा डेंचर करवाया है ना, तो वो हंसते तो बहुत विचित्र लगते हैं, क्योंकि हम उनके क्या बोले, उससे वाकिफ नहीं है। हमारे पिक्चर में कुछ और चले आता है। दादा ने कहा हमारे कारण किसी का निधि ध्यान बिगड़े वो गलत है। बोलो, तो उन्होंने सारे जीवन वो परेशानी सहन करते रहे। अभी कैसे हमें लगता है, अभी ये कोई ऐसा बताने की आशय से नहीं है, लेकिन आप ही सोचो,
आपने कोई सेवक को रखा, क्या वो सेवक आपके कहे अनुसार सब कुछ करेगा? बोलो ना, सब कुछ करेगा? अरे हमारे घर में भाई आती है ना, वो नहीं करती है, हम उसके साथ उलझते रहते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक नहीं करते। नहीं तो अंदर तो होता ही रहता है। 100 बार अंदर होता है तो शायद 1 बार या 25 बार अंदर होता होगा ना, तो 1 बार बाहर बोलते हैं, अम्मा ऐसा करके बोलो। तो हम सोच सकते हैं कि दादा के पास सेवा करने के लिए 1 नहीं थे, 4 5 और बदलते भी रहते हैं। 1 2 साथ रहते हैं, बाकी लोग बदलते रहते हैं। अब बोलो, लेकिन दादा ने कभी उसका क्या कहेंगे जिक्र भी नहीं किया। क्यों? उनका कारण या उनका आशय लक्ष्य क्या था कि सेवा के बहाने मेरे साथ रहते हैं ना, तो कुछ सीख कर जाएंगे। बोलो, क्योंकि और कहीं सीखने मिलेगा ही नहीं, सीखने मिलेगा ही नहीं, क्योंकि किसी के पास ये समझ है ही नहीं। इसीलिए क्या होता है, हम छोटे से बड़े हुए, जब तक शादी नहीं हुई, क्योंकि 20-25 साल समझो, 25 साल तक शादी नहीं हुई, लेकिन 25 साल तक शादीशुदा लोगों को देखते रहे, वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, पूरा देखा है। इसीलिए 25वें साल में जैसे शादी होती है ना, तो आप वही घरेलू जीवन जीना शुरू कर देते। बार बार आपको याद आता कि डैडी ने ऐसा किया था, मम्मी ने ऐसा किया था, उनके घर ऐसा देखा था। आई एम एंटिसिपेटिंग, क्योंकि वो संजोग हमारे आया नहीं है, आने वाला भी नहीं है। बराबर है कि मम्मी ऐसा करते थे, डैडी ऐसा करते थे करके। बोलो, अभी डैडी 10 से 6 अगर 5 ऑफिस का टाइम है, डैडी 11-12 बजे जाते हैं। when he was in full control, full charge of the business। अगर वो 11-12 बजे जाते हैं, 5 बजे तक का टाइम होता है, लेकिन 3:30, 4, 4:30 बजे निकल जाते हैं, तो बच्चे को क्या लेसन मिलेगा? वो ऐसा ही सोचेगा कि डैडी तो आते नहीं थे, फिर मुझे 10 बजे आने का क्या काम है, और 5 बजे रुक के क्या करूँगा। लेकिन हमारे ऑफिस में ऐसा हमने देखा था, ऑफिस में बॉस होते हैं ना, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो सब लोग बोलते हैं शेर पिंजरे में है, सावधान, कोई गड़बड़ नहीं करना। और वो जब वो है ना, बहुत जल्दी आ जाते हैं। हमारा 8:20 का समय था, और वो आ जाते हैं 7:30 बजे, 7:45 बजे अपने ऑफिस में पहुंच ही जाते हैं। और फिर जब 8:20 होता है ना, तब 12 के खड़े हो जाते हैं। 12 के खड़े हो गए, यानी सब टेंशन में, क्योंकि वहाँ मास्टर रखा था, मास्टर एंट्री थी, और जो कोई आते हैं ना 8:30 के बाद उनकी अच्छी सी धुलाई करते थे, बराबर से धुलाई करते, और सब तो बराबर डरते भी थे। और वो कभी मैनेजर को भी स्पेयर नहीं किया, छोड़ा नहीं। बोलो, इतना बुरी तरह से धुआं निकाल देते थे। आने का टाइम है, 5 मिनट भी लेट क्यों हुए? और 5 मिनट तक तो वो ग्रेस टाइम दिया है। वो 8:25 को वो सारा मास्टर उनकी ऑफिस में चले जाता है। अभी तो फिनिश, अभी उनके ऑफिस में जाना ही पड़ता है, क्योंकि मास्टर पे साइन नहीं करेंगे तो आपकी एब्सेंस हो जाएगी। बोलो, लेकिन वो क्या सिखाते हैं, वो बात समझता है। हमने ये सुना था कि वंशराज जी को आप जानते हैं, वंशराज जी जब काम करते थे ना, तब वो समझो 8 बजे जैसे कुछ या 9 बजे का टाइम होता था ना, 7 बजे वहीं पहुंच जाते थे। तो सब काम करने वाले टेंशन में आते, अरे साहब आ गए, तो वो थोड़ा जल्दी आए, तब भी साहब आ गए, थोड़ा जल्दी आए, अरे तब भी साहब आ गए। फिर उनको पता चला कि ये 7 बजे आ जाते, रात को 9-10 बजे जाते। अभी ऐसे काम में अगर साहब आपके 7 बजे आ जाते हैं,
तो आपको 9 और 10, वो बात सही है, ऑफिशियल टाइम 10 बजे का है और सब जो 7 बजे छूट जाते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन सांप रुकेंगे, उनके सामने आपको जाना है ना, उनको बोल के जाना पड़ता है मैं जा रहा हूँ। तो एक बहुत धर्म संकट है कि सांप बैठे हैं तो आप कैसे जाओगे, ऐसा है। लेकिन ऐसे काम में ऐसा बिजनेस जो ऐसा होता है वो अलग हो जाता है। वो उत्तम भाई बताते थे, अरे वो इतने जल्दी आ जाता है, उनको उनके पहले या उनके साथ तो आना ही चाहिए, उनके बाद आ गए तो इतना बुरा लगता है ना, सचमुच। अभी ऐसा हमने कभी फील ही नहीं किया, लेकिन वो बड़ी कंपनी होती है ना तो उसमें ऐसा होता है। लेकिन ये क्या बताते हैं, वो बात समझना, मूल बात यह है कि हमने देखा है कि संसार के लोग, धंधे के लोग, काम के लोग, मम्मी को देखा है, ऐसे सभी के घर की बात सुनी है, देखी है, बार बार गए। अभी प्रश्न ये है कि जिनको ज्ञान प्राप्त है वो ज्ञान वाले कैसे रहते हैं, वो पता है? कभी किसी को देखा ही नहीं ऐसा, और पता ही नहीं है कि ये ज्ञान प्राप्त किए वाले का व्यवहार है। इसीलिए हमें समझना पड़ता है, उसके पीछे प्रश्न पूछने पड़ते हैं। बोलो परिणाम, यानी उसका कारण क्या है? दादा ने बताया आज्ञा में है तो महावीर भगवान जैसे रहेंगे आप, लेकिन महावीर भगवान जैसे हम रह नहीं पाते, यानी कहीं हमारी गलती हो रही है, और जो हमें समझ में भी नहीं आती है, जो हमें समझ में भी नहीं आती है, तो अभी दिमाग चलेगा ना। दादा ने कहा आज्ञा में, तो हमने कैसे हम आज्ञा में है? आज्ञा में तो महावीर भगवान जैसा अनुभव होना चाहिए, क्योंकि बोला महावीर भगवान जैसे मुक्तता से घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे। फैंटास्टिक। तो ऐसा ये करके जैसे दादा को ने ऐसा बताया है, तो हम उनके बारे में सोचेंगे कि दादा ने ऐसा क्या बताया है, और वो आज्ञा के संबंध में क्या कहना चाहते हैं। संसार में लोगों को देख दिया, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी, कथाएं पढ़ी है हमने, लेकिन ज्ञानी जो जीवन में सक्सेसफुल, सफलतापूर्ण मोक्ष में गए, उसका क्या जाना है? अभी ये एक बड़ा प्रश्न है कि उन्होंने अपनी वृत्तियों को संक्षिप्त करते गए, यानी संक्षिप्त होती गई उनके उपयोग के परिणाम से, आत्मा के उपयोग के परिणाम से जो चिकनाहट, जो 5 इंद्रियों के विषय के संबंध में थी, वो उसको क्या बोलते हैं, संकुचित करते गए, अभी सही शब्द नहीं है, नहीं, कुंठित करते गए, अंदर लेते गए, जिसके कारण वो कम खाते थे, जिसके कारण जो सब उनका था, अभी उसको लोगों ने भगवान का तप मान लिया, और वो करने जाते हैं कि अब हम ये आज खाना नहीं खाएंगे, महावीर भगवान ने ये सब बताया है करके। अभी तो महावीर भगवान ने गलत तो नहीं बताया, लेकिन महावीर भगवान ने ऐसा किसी को बताया ही नहीं है। वो जैसे जैसे उनकी ज्ञान में, अनुभव में वृद्धि होती गई, तो उनके अंदर ये परिणाम आता गया। वो ज्ञान के परिणाम से जो तप हुआ, और जो तप किसी को भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन शास्त्र में आ गया है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हुआ वो हम करने जाते हैं, और करके हम अनुभव करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? इसीलिए ये तो दादा भगवान ने स्पष्टता की कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ज्ञान में, जागृति में, तो ये वृत्तियाँ संक्षिप्त होती जाएगी, और फिर अपने आप देखो दिन में कितनी बार खाने का मन करता है, वो देखो आप। अभी सोचें, जांच करें तो पता चलेगा कि शरीर को तो जरूरत नहीं है, सही है, तो फिर ये खाने का जी कैसे कर रही है, भूख कैसे लग गई? ये रस डूबता है, वो काम करता रहता है। अभी ऐसा नहीं कि वो गलत है,
सब लोगों को यही है, लेकिन ये रस लुब्धता का प्रभाव या उसकी असर में से निकलेंगे कैसे? तो उपयोग से, यानी आत्मा का उपयोग, यानी शुद्धात्मा दृष्टि से ये खाते वक्त स्वाद में खो जाने बगैर उसको जानेंगे कि इसमें ये मीठा है, ये तीखा है। और ये भी एक प्रश्न अंदर से हुआ था कि जब खाना खाते हैं ना तो मुख में खाना खाने से ज़्यादा अंदर पानी ज़्यादा पड़ना चाहिए, पर उसको क्या बोलते हैं, हाँ, वो ज़्यादा गिरना चाहिए। लेकिन आप अगर उसको क्या बोले निरीक्षण करेंगे ना तो शुरुआत में पड़ती है, फिर वो टेस्ट खा जाता है, यानी टेस्ट ले जाता है, तो भी समझ लेना चाहिए कि अभी ये बंद करो। लेकिन वो रुकता नहीं है वहाँ पर, और वो सब जाके अंदर परेशान करता है। 12.5 साल में ऐसा बताया, वो अभी आंकड़ा मुझे मिला नहीं है, 12.5 साल में महावीर भगवान ने 365 से ज़्यादा दिन भोजन आहार लिया है। 400 से कम है, 400 से कम है, 365 से ज़्यादा है। उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने एवरेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? एवरेज इंग्लिश का बोले, ठीक है, वो तो बोल लेते हैं, लेकिन एवरेज महावीर भगवान 12.5 साल का मतलब क्या है कि 12 दिन में, 1 साल से ज़्यादा लिया तो 12 दिन का एक बार उन्होंने खाना खाया, तो एवरेज 12 से 15 दिन समझो, 12 से 15 दिन में एक बार खाना खाया एवरेज। 12 से 15 दिन तक खाते हैं, तब वो 12.5 साल में 365 से ज़्यादा और 400 से कम। अभी कोई ऐसा करके तीक्ष्ण बोले मैं तब करूँगा, तो उसका कोई मतलब भी नहीं होता है। जो दृष्टि के कारण परिणाम आया, दृष्टि के कारण वृत्तियाँ संक्षिप्त हुई, उसके परिणाम से ये हुआ, वो हम करने जाते हैं और मानते हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तपस्या जो करते हैं उनका दिमाग बहुत गर्म हो जाता है, वो महसूस नहीं करते। करके देखना तो पता चलेगा। और कोई आपका सुनेगा नहीं या आपका कोई थोड़ा ध्यान नहीं रखेगा। गलत है करके नहीं बताते कि कहाँ पर हमें फोकस करना है, और वो फोकस रहेगा तो वो परिणाम अपने आप आएंगे। बिल्कुल। सबके संयोग भी अपने अपने अलग होते हैं, उनका संयोग था। संयोग का क्या मतलब है? संयोग का बहाना करके छटकने की बात करते हैं। नहीं, उन्होंने इतनी मान लो तपस्या की, पहले कुछ की ही नहीं है उन्होंने। बोलते 25वें भाव में 11,60,000 मास्कमण किए थे, तो उनका संयोग वो तो कुछ, अरे ऐसा है ना, वो सब आंकड़े बता के हमको तपस्या करवाने की प्रेरणा करते हैं और तपस्या करके अहंकार बढ़ाते हैं। तपस्या का मतलब ये होता है, इसका परिणाम दिन भर दिन अहंकार कम होना चाहिए। हम झुकते रहते हैं, झुके हुए रहते हैं, लेकिन ऐसा रहता है तो हम तो तपस्या करते हैं। लोग कुछ नहीं करते, दिन में 3 बार खाते हैं और 5वीं बार खाना होता है तो ये खा ही लेते हैं, नहीं खाते। तो बात सही है ना, ऐसा है। लेकिन ऐसा कोई गलत नहीं है, हम ये नहीं कहते। लेकिन हमारा ये जो अनुमान है ना, हमारा अनुमान कि भगवान ने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, वो हो भी सकता है, लेकिन वो करने के लिए नहीं, ये क्योंकि वो तो क्रम से आए हैं, यानी करते 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 आए हैं। संयोग हो सकता है कोई, लेकिन ऐसा कह के हम छटकने की कोशिश करते, ये मैं बताता हूँ, वो गलत है।
वो गलत है, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया उसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा, वो गलत। और ये करके उनका भी, हाँ, लेकिन मूल बात समझना है, और वो बात समझ लेंगे तो हम सही दिशा में हमारा पुरुषार्थ होगा और हमें उसका परिणाम मिलेगा जो हम चाहते हैं करना, जो हम करना चाहते हैं। दादा भगवान ने कहा, हमने ऐसा उनकी भाषा में सम खाते हैं ना, क्या क्या बोलते, सम नहीं, उसको क्या बोलते, अरे नहीं, हाँ कसम नहीं, उसको क्या बोलते हैं, सौगन खाने के लिए जितना भी हमने उपवास नहीं किया है, क्योंकि हमें रहा ही नहीं जाता है। अभी क्या करेंगे? त्याग करने के लिए, हाँ, उपवास का त्याग करने के लिए, जाने उपवास करने के लिए वो हम रह ही नहीं पाते, लेकिन हमने सदैव बोला उणोदरी का ध्यान रखा है। अभी बोलिए, बात समझना है कि दादा को बार बार पूछा गया कि दादा आपने क्या किया था कि ये ज्ञान प्रकट हो गया, तो कई बार तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया है ना, क्योंकि लोग ऐसा सुन के चाहते हैं कि मैं ऐसा ही दादा के जैसा करूँगा ना तो मुझे ज्ञान प्रकट होगा। वो नहीं है ऐसा, ये वो नहीं है। इसीलिए फिर आखिर में तो उन्होंने ये बताया, ये जो 9 कलमें की थी, नमस्कार विधि जो जो हमें बताई, वो बोले हमारा पुरुषार्थ रहा और वो पुरुषार्थ के परिणाम से ये प्रकट हुआ, ऐसा है। फिर एक बार तो ऐसा भी बोल दिया था, पता ना, वो जैसे ज्ञानी पुरुष की वाणी किसी के कटाक्ष नहीं होती है, लेकिन वो सामने वाले जो ऐसा चाहते हैं ना कि वो कुछ बता दे और हम करें, फिर जो गलत है, क्योंकि बोले दादा ने कहा कि मैंने ये किया था तो मैं ये करना शुरू कर दूँ। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ मैं फिर बाद में, तो वह बैठे बैठे नींबू काटे थे ऐसा करके भी बताया कि वो करने से ये प्रकट नहीं होता है। एक बार दादा भगवान ने बताया कि ब्रह्मचर्य के पालन के लिए केवल भात खाओ, उसमें घी नहीं डालना, शक्कर नहीं डालना, दूध नहीं डालना, दही नहीं डालना, छाछ नहीं डालना, केवल भात, चावल खाने का। तो भी दादा तो सबको देखते रहते हैं कैसे हैं कैसे नहीं, लेकिन दादा ने ऐसे सत्संग में बताया था, ऐसा नहीं कहा कि आप ऐसा खाना शुरू करो करके। किसी ने पूछा था कि अगर ऐसा करना है तो क्या किया जाए, तो दादा ने बताया ऐसा। दादा ने देखा 3-4 हफ्ते हो गए ना कि लोग, यानी हमारे जैसे सब जो आप तो पुत्र थे ना, वो उनकी शायद क्षीण होती गई, वो चेहरे का तेज निकलने का जाने लगा करके। दादा ने पूछा क्या करते हो आप? बोले दादा मैं भात ही खाता हूँ, आपने बताया ना उस दिन। दादा ने कहा फिर बाद में बताया, जो कुछ करना है मुझे पूछ के करना, पूछे बगैर नहीं करना, क्योंकि हमारी आदत है। दादा ने बताया कुछ आप तो पुत्र है ना दादा के समय में, उनको जो भी कारण है दादा ने बताया था, एक ये रविवार के दिन आपको खाना नहीं है। और कई बार हम रविवार के दिन जाते थे, हम तो मुंबई से बड़ौदा जाते थे, तो जब खाना खाने के लिए चलो चलो खाना खाना, कर्फ्यू है। तो हमें नहीं समझ में आता था ये कर्फ्यू करके क्या बोलते हैं। फिर बाद में पता चला कि रविवार के दिन वो भोजन नहीं लेते, सारा दिन पानी पे ही चलाते हैं। तो ऐसा करके तो हमेशा ये 5-6 आप तो करते हैं, और जो वहाँ पर है तो हमें भी थोड़ी प्रेरणा होती है कि हमें भी करना चाहिए। तो फिर ये बात मुझे पता थी कि जो भी करना है दादा को पूछ के करो। तो मैंने एक बार दादा को पूछा, दादा मैं भी रविवार के दिन नहीं खाऊं, आप आज्ञा करो। थोड़ी देर मेरे सामने देखा, आपका काम नहीं है। मुझे मना कर दिया, मुझे मना किया था। अभी बोलो, और ये भी बताया था आप कमजोर हो जाओगे। जो भी कहा, हमें तो दादा ने कहा यानी पत्थर की लकीर, कुछ पीछे सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा
दिखावा से भी कई बार ऐसा हो जाता है कि इन्होंने, मैंने देखा कि ये चावल पर आ गए हैं तो मैं भी चावल पर आ जाऊं। ऐसा है ना, ये चावल पर आ जाए और पुली नारायण चावल करना खाए तो क्या हो जाएगा। नहीं, सोचने वाली जैसी बात है। नो पुली नारायण जी इसो लीन, ऐसा है। तो जो जो हमें मिला है ना दादा से बानी, वो उनके वचन, तो उसको हमें समझ लेना है कि क्या बताया। शुद्धोपयोग में रहो। शुद्धोपयोग किसको कहते हैं? शुद्धोपयोग में रहना यानी क्या करना। हमको तो क्रिया आती है, क्रिया करने आती है, लेकिन ये क्या है? शुद्धोपयोग में रहना यानी वो कौन सी क्रिया है? थोड़ा ही चाहिए होता है। शुद्धात्मा के उपयोग में रहो। मैं तो हमेशा ऐसी कोई बात निकलती है ना तो फिर वो मैं लिख लेता हूँ। वो लिखने का कारण वही है कि मैं लिखता हूँ, फिर वो उसके बारे में सोचता हूँ। क्या लिखा आज? आज बताता हूँ ना थोड़ा मैं। दादा का विज्ञान आसान है। क्यों आसान है? कैसे उन्होंने कहा आसान है? बहुत सारे थे। हाँ, ज्ञान क्या देखता है? तो फिर आंखें क्या देखती है? उसका अभ्यास करना है हमें। यानी आंखें देखती है और ज्ञान दिखाता है। समझ में आया? क्योंकि ज्ञान प्रकाश का हम उपयोग करके, तो उपयोग में वो क्या दिखाएगी तो हमें समझ में आ जाता है कि ये ज्ञान का उपयोग है कि आंखों का उपयोग है। इसे एक उदाहरण लेते हैं कि ज्ञान आंखों के उपयोग से ही दिखाई देगा। अल्पेश भाई है, अल्पेश भाई है, क्योंकि ये आंखों के में ज्ञान नहीं है। ये आंखों से काम करती है पीछे बुद्धि, और बुद्धि यही पहचान करवाती है अल्पेश भाई है, अल्पेश भाई है करके। अब ये ज्ञान क्या बताएं? ज्ञान यानी तीसरी आंख का उपयोग। ज्ञान क्या बताएं? आंखें का नाम। आंखें नहीं, ये आंखें का बात व्यवहार बताया, लेकिन वो अल्पेश ही है। तो बोले व्यवहार दृष्टि से ये अल्पेश ही है, लेकिन निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है। अभी देखो, तो यहाँ हो गया शुद्धात्मा का उपयोग या तीसरी आंख का उपयोग। अल्पेश भाई ने ये किया, वो किया, वहाँ गए थे, यहाँ गए, यहाँ आए, वो करके। तो अभी ये तीसरी आंख क्या बताती है? अल्पेश भाई नहीं गए, वो उनको कुदरत की संचालक शक्ति ले गई और लेके आई। नहीं तो क्या आरोप होता है? अल्पेश जी ने ऐसा किया, वैसा किया। अच्छी बात है तो भी अच्छा किया, वैसा किया, और कुछ गलत बात होती है तो उसके ऊपर तो आरोप लगता है कि उन्होंने ऐसा किया। मालूम है आपको? नहीं मालूम? ऐसा किया बोलो। अभी हाँ ऐसा किया, फिर हम किसी और को बोलेंगे। तो फिर जब अल्पेश जी को मिलेंगे ना तो वही उन्होंने बताया था ना, बोलो ये ऐसा करते हैं। अभी शुद्धात्मा तो देखने की बात ही नहीं करने की, वही बात से आपकी वो चलेगी। और जो मेरे साथ हुआ वो मेरे और उनके साथ के कर्म का परिणाम था, लेकिन वो मुझे क्या बोले पचन नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ, इसलिए मैं इधर शेयर करता हूँ। शेयर करने का तो अच्छा है ना। फिर उनको भी वही आंखें लग जाती है, फिर वो ये तीसरी आंख से नहीं देखेंगे, वो ही आंख से देखेंगे कि दीपकान के साथ ऐसा किया था, बोलो उन्होंने, हमारे साथ भी कर सकते हैं, तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। उनके साथ का मेरा कलम अलग है, उनके साथ का कलम अलग है, ये बात होती है। इसीलिए ऐसा कर करके एक अंदर एक जागृति हमें बनानी है कि जो दादा ने कहा है उसका मतलब क्या है, और वो मतलब समझेंगे तो हम वो बात जिएंगे, और जिएंगे तो वही बात का हमें अनुभव खुला होगा। और वो अनुभव हम है, वो जिए वो हम है।
इसीलिए दादा के बारे में क्या बताया, देहधारी परमात्मा बोले। यानी एम पटेल का जो व्यवहार था वो भीतर के दादा भगवान ने प्रकाशित किया, और वो दादा ने अंतरात्मा दशा ने देख लिया और उसको रिपेयर करते गए, सुधारते गए और सुधारते ये कक्षा पे पहुँचे कि दादा भगवान ने अंदर से कुछ एम पटेल का बताया, तो उन्होंने कभी चूके नहीं उसको सुधारने का, उसको सुधार ही लिया। तो बोले ऐसा करते करते ऐसा हो गया कि अभी दादा भगवान को वो मौका ही नहीं देते हैं उनकी कोई गलती निकालने की, क्योंकि अगर उन्होंने दिखा दी तो प्रतिक्रमण करके क्लियर कर देते थे। बोले इसके कारण हमें खुमारी रहती है। और वो बोले दरअसल खुमारी क्यों? क्योंकि अगर भीतर के भगवान ने दिखा दिया कोई गलती, तो बोले हम प्रतिक्रमण कर चुके बगैर उसका निराकरण कर दिया। इसीलिए आज भगवान भी मेरे तरफ उंगली उठा नहीं सकते, लेकिन इस तरह से रहते रहते भगवान मुझे वश हो गए। बात बहुत बड़ी है, भगवान मुझे वश हो गए। अभी वो भी उन्हें इतनी उदारता से बताया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान की कृपा इनके ऊपर उतारो, तो दादा भगवान की कृपा उतारते हैं। अभी दादा भगवान को तो कुछ करना नहीं है, लेकिन कृपा कैसे उतरती है? तो बोले ऐसे प्रतिक्रमण करते करते एम पटेल इतने परम पवित्र हो गए, उनकी वाणी में बल, दृष्टि में बल, तो वो कहा आपका काम हो जाएगा, हो जाता है। और फिर उनकी प्योरिटी के कारण वो बोलते हैं, उनको पता है कि ये काम करने के लिए कौन से देव देवियाँ हैं, तो बोले हम फ़ोन कर देते हैं कि हम उनके लिए बता देते कि ज़रा इनकी तकलीफ़ है तो आप ज़रा देख लो। बोले उनका सुनते हैं, क्योंकि वो सभी के परम विनय में रहे हैं। हम किसी का सुनते नहीं है तो हमारा कौन सुनेगा? सोचो, बोलो। किसी के सुनने का हम वो क्या बोले वाकिफ है ही नहीं। सुनाने का तो बहुत अच्छा लगता है, बोलते रहो ये बात। तो अब देवी देवता उनके ऊपर खुश है, इसीलिए कहा कि दादा भगवान सभी जगह पे एक अच्छी बात ये है, क्रम में हमें भगवान का हाथ पकड़ना पड़ता है और चलना पड़ता है। अक्रम में भगवान हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो हमें कोई विकल्प ही नहीं बचता है कि वो बोले ना मैं घसीट के ले जाऊंगा मोक्ष में, ये बात है। इसीलिए अगर हम आज्ञा में नहीं रहते, कुछ भी गड़बड़ करते ना, तो भीतर की प्रज्ञा शक्ति जान खा जाती है हमारी, बोले ना ऐसा बोले तो वो सुधार के ही हमें छोड़ती है। जरा थोड़ा ठंडा हो गया ना तो बोले बहुत हो गया, अभी सो गए ना, आराम हो गया ना, अभी क्या है, चलो ये करो, चलो ये करो, ये बात है। इसीलिए और अगर दादा ने तो हाथ पकड़ा है, लेकिन अगर हमने उसके ऊपर उनका हाथ पकड़ लिया है ना, काम निकल गया। क्योंकि उसका मतलब क्या है, उन्होंने हाथ पकड़ा है तो उसका परिणाम क्या होता है, संजोग में हमें जागृति नहीं रहेगी। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया आप कौन हो, तो मैं बताएंगे मैं शुद्धात्मा हूँ, क्योंकि दादा भगवान ने हाथ पकड़ा है। और अगर हमने दादा को हाथ पकड़ा है ना, तो हमें संजोग में लक्ष्य रहेगा कि मैं कौन हूँ। ये फर्क है। दादा ने पकड़ा है तो उनकी ये समझ से फिर हम उनका हाथ बराबर से पकड़ लेते, थाम लेते कि अभी छोड़ना ही नहीं है। और एक अच्छी बात ये बताई कि सारे दिन में अगर आपको दादा याद आते हैं ना, और दादा खुद मुक्त है, तो आप मुक्ति का एहसास करोगे।
बोलो, अभी इतने सारे इतने ढंग के प्रमाण दिए हैं, बहुत मजे की बात है। और वो हमें दे दिया है, इसे समझना बाकी है, पूरा समझना बाकी है। पूर्ण समझ वो केवल ज्ञान बताया है। उनकी कृपा से अंतर्मुख हुए, पुरुषार्थ से समझ में आएगा, और जैसे समझते जाएंगे हमारी कक्षा बढ़ती जाएगी। पूरा समझ लिया, इसीलिए कहा अभी आज्ञा ही आपका केवल ज्ञान खुला करेगा और आज्ञा ही मोक्ष में ले जाएगी। बोलिए अपना, जैसे गौतम बुद्ध के जो 3 वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, गौतम बुद्ध के 3 मंत्र है कहेंगे तो, कि 3 वो बताया है, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो हमारे लिए दादा शरणम गच्छामि, लेकिन दादा शरणम गच्छामि बोलते तो हम बोले खत्म हो गया उनकी स्टोरी, उस तरह से हम लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं है, समझ में आया? नहीं नहीं मुझे नहीं बोलना है समझ में आया निर्मल जी? कुछ चले जाते हैं ना तो दादा शरणम गच्छामि, वो देख के ही हम डर जाते हैं, कौन गए करके देखते हैं। नीचे फोटो बोलो, अभी दादा शरण गच्छामि हम हुए हैं, दादा के शरण में हम गए, यानी ज्ञान के शरण में गए हैं। ज्ञान के यानी ज्ञान का उपयोग करो। भी दादा शरणम गच्छामि बहुत समस्या हो गई है कि हम दादा के मुक्तता के वचन कहाँ उपयोग करते हैं, तो फिर वो उपयोग से वो वचन पहचाना जाता है जो हकीकत में नहीं है। फिर कहा धम्मम शरणम गच्छामि, यानी धर्म आज्ञा वही तप, तो आज्ञा शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो भी कृपा से पहला हुआ है, दादा के शरण में गए हैं, और दादा के शरण में उन्होंने लिया है हमें। वो कैसे लिया है? बोले मन वचन काया नाम, नाम की सर्व माया, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप दादा भगवान के श्री चरणों में समर्पण करता हूँ। वो उन्होंने करवा दिया, इसीलिए उन्होंने हमें उनके शरण में लिया है। तो ये दादा शरण गच्छामि हो गया, अभी वो करना नहीं है। लेकिन वो हम ऐसी अपेक्षा से लेते हैं कि अभी प्रज्ञा शक्ति को हमें सुनना है, हम सुनेंगे प्रज्ञा शक्ति का, यानी हमारा निश्चय खुला करते हैं कि हमें दादा की आज्ञा में रहना है। वो निश्चय ही हमें आज्ञा में रखेगा करके। फिर कहा संगम शरणम गच्छामि। संगम शरणम गच्छामि यानी जो भगवान के संग में है, एक सोच वाले, वो साथ में रहना। वो साथ में रहेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव से, एक दूसरे के चारित्र का हमें लाभ मिलेगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। सत्संग का हेतु यही है। हम मानते हैं कि ऐसा किया वैसा किया, नहीं, हमें, क्योंकि दादा ने क्या कहा था कि ज्ञान मिल गया ना, अभी 300 घंटे दादा के सानिध्य में गुजारना, सत्संग में कुछ नहीं करना, वहाँ आके बैठना, बस नींद आए तो झपकी ले लेना, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जाना। बाहर गए तो गए काम से। बोलो, तो बोले आप देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते समझते जाओगे कि ज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है, यानी ज्ञान प्राप्त हुए का व्यवहार कैसा होता है, तो आपको समझ में आ जाएगी हमें भी ऐसा करना है। और फिर ये देखा है ना तो आप सीख ही जाओगे। सीखने का रास्ता ये है, देखो वो है ना, जुगनू की जरूर नहीं सूरज की जरूर है, बोलने की जरूर नहीं दिखला दे मंजूर है। चारित्र बोलता है, वो उसको बोलना नहीं पड़ता है, चारित्र खुद बोलता है। और महात्मा, सभी महात्मा में अंश चारित्र खुला है दादा भगवान की कृपा से। किसी का ये खुला है, किसी का वो खुला है, किसी का वो खुला है। तो हम साथ में रहेंगे
तो एक दूसरे का जो खुला है वो हमें लाभ हो जाता है। बोलो, जैसे वो सब मिल के पार्टी करते हैं ना, कोई रोटी लेके आए, कोई सब्जी लेके आए, कोई दाल लेके आए, कोई चावल लेके, सब मिल के पूरा खाना हो जाता है। ऐसा है, इसीलिए साथ में रहेंगे तो बोले आपके प्रकाश से जो मेरा नहीं दिखता था ना वो मुझे दिख जाएगा। ऐसा है, इस तरह से इसीलिए संगम शरणम गच्छामि इतना महत्व का है। लेकिन उसको केवल क्रिया में नहीं ले जाना है, उसके पीछे लक्ष्य आशय अगर समझ में आता है, रहता है ना, तो सहज में रहेगा। तो जब तक ऐसा मौका मिलता है तो हम शुद्धात्मा के खाते में अच्छा जमा कर देते हैं। ये जो सत्संग में जाते हैं तो उसमें बहुत लाभ होता है। अभी आप बोलो कुछ, मैं तो बोलता गया जो वो तो मुझे जो ये सब सुनते सुनते सब आया ना वो मैंने बताया। अभी आप बताइए थोड़ा। नहीं वो तो ठीक ही है ना, लेकिन हमको भी पूछना है तो क्या पूछना चाहिए ना। हाँ, वो तो फिर करेंगे ही। हम 2-5 मिनट ऐसा मौन रहेंगे ना, फिर वही शुरू हो जाएगा। पूछता नर पंडिता, ऐसा बोला है। पूछते पूछते पंडित हो जाओगे। बोलो दिनेश भाई। बदली ली की करें। इतना छोटा भी है? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। उपयोग चूक्या जान्यु त्याति सूर्त शरु कर प्रतिक्रमण। पहला, उपयोग चूक गए वो कैसे पता चलता है? उपयोग में रहने का उसका मतलब क्या है? उपयोग में कौन रहता है? वो सब नहीं कर जानना चाहिए। वो समझेंगे तो चालू हो जाएगा। उपयोग का मतलब है वापरना, बराबर है? हाँ। कौन सी दृष्टि? वो प्रज्ञा शक्ति खुली है ना, तो वो सब प्रकाशित करती है। प्रज्ञा शक्ति क्या प्रकाशित करती है? क्या क्या प्रकाशित करती है? नहीं, वो व्यवहार दृष्टि से रहना तो हमारा काम है, लेकिन वो प्रकाशित क्या करती है? प्रकाशित क्या करती है बताए ना। ये लाइट किसको किसको प्रकाशित करती है? इल्यूमिन्स व्हाट? हाँ हाँ, लेकिन वो तो ये लाइट का ऑब्जेक्ट सब इल्यूमिन करता है। वो अंदर की लाइट किसको प्रकाशित करती है? देखो, वो लाइट भगवान की लाइट है, प्रज्ञा शक्ति। वो दो व्यक्तियों को समझने के लिए, दो व्यक्तियों को प्रकाशित करती है। एक जो व्यवस्थित के हाथ में है, यानी देवयानी बहन को, जो मशीन है, जो लट्टू है, बोमरडाय करके बोलते हैं ना, वो है। और दूसरे आपकी अंतरात्मा दशा, दोनों को प्रकाशित करती है। अंतरात्मा दशा प्रकाश का उपयोग भी करती है, वो प्रकाश का उपयोग भी करती है। वो जब प्रकाश का उपयोग करती है, ऐसा है यहाँ देवयानी बहन है, यहाँ शुद्धात्मा भगवान है, प्रज्ञा शक्ति है, हम बीच में है। हमारी
स्थिति बीच में है। जब ज्ञान नहीं था तो इधर ही मुख था, मैं देवयानी बहन ही हूँ। अभी ज्ञान मिला तो मैं शुद्धात्मा हो गया, और अब आज्ञा में आ गई। तो आपका दो काम रहा, दो दृष्टि का काम रहा। एक दृष्टि से प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश का उपयोग करके देवयानी बहन को देखने का, बराबर है, वो हमारा प्राथमिक पुरुषार्थ है। भगवान के प्रकाश में देवयानी बहन को देख लो कि उनकी क्या गलतियां हैं। नंबर 1 स्थूल यानी आचार की, वर्तन की, वाणी की, स्थूल में आती है। वाणी वैसे स्थूल सूक्ष्म है, लेकिन हम उसको स्थूल में लेते हैं। फिर दूसरा सूक्ष्म यानी मन के दोष। मन के दोष यानी हम सामने वाले की मान्यता से सहमत नहीं होते, अपना पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण हमारा चेहरा बिगड़ जाता है। ये सूक्ष्मतर का मतलब है कि दादा ने बता दिया है कि ये सब क्रिया कोई करने वाला नहीं है, कुछ कुदरत की संचालक शक्ति ही करती है। तो हमारी बुद्धि बोलती है ऐसा होता है, ऐसा कैसे हम स्वीकार करें? व्यवहार में तो ये बोलना ही पड़ेगा ना, व्यवहार में कैसे स्वीकार करेंगे हम? तो ये बुद्धि का हस्तक्षेप है व्यवस्थित के ऊपर। तो वो सूक्ष्मतर दोष है, वो व्यवस्थित स्वीकारने नहीं देती है। आपने कहा व्यवस्थित, दादा ने कहा वो सही है, लेकिन ये ऐसा करना चाहिए और हमको ऐसा बोलना चाहिए। तो ये सब तूफान हो जाता है, यानी किसी को भी दुख होता है, वो गलती में जाता है, सूक्ष्मतर। और सूक्ष्मतम दोष का मतलब क्या है? आत्मा है ना, वो अहंकार है ना, वो आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आत्मा। लेकिन अभी वो क्या करता है? वो शुद्धात्मा का काम क्या है? देखना, जानना, परमानंद में रहना। और ये अहंकार क्या करता है? मैंने किया, मुझे हुआ, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो जहाँ हमें देखना है यानी समझना है, लाइट का उपयोग करके समझ लो कि ये व्यवहार है, ये जो दिखाई दिया ना वो व्यवहार है, सही है। अभी ये जो व्यवहार यानी देवयानी बहन का व्यवहार है। अभी देवयानी बहन का व्यवहार जो है वो अधूरा है। अधूरा का मतलब है कमजोरी वाला है, बराबर है। तो आप बोलेंगे आप अपने आप कर लो, ठीक। मशीन को, गाड़ी को बोलते आप अपने आप चलाओ तो अपने आप चलो, पॉसिबल नहीं, किसी को चलाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो परिस्थिति देवयानी बहन की है वो किसी ने की है, ऐसा किसी ने किया है, इसीलिए वो आज ऐसे है। ख्याल में आया? तो किसी के करे बगैर वो कैसे ठीक होगा? इसीलिए आपको करना है अंतरात्मा दशा में, व्यवहार दृष्टि से। तो व्यवहार दृष्टि की आज्ञा क्या करती है? वो दृष्टि जो व्यवहार में कमजोरी प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में आपको दिखाई देती है, उसको आप व्यवहार दृष्टि से ठीक करते हो। इसीलिए व्यवहार दृष्टि का पुरुषार्थ सबसे बड़ा है। वो प्रतिगमन व्यवहार दृष्टि ही करता है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होता है देवयानी बहन में, और देवयानी बहन में रिफ्लेक्ट होता है, मतलब ये काम हुआ। लेकिन यहाँ से तय किया कि मुझे प्रतिगमन करना है, देवयानी बहन ने प्रतिगमन नहीं किया। वैसा होता है ना? वो क्यों होता है? वो प्रकृति की कमजोरी है। वो आगे की जो बनाया है ना मूर्ति, वो मूर्ति में वो मिस्टेक थी। मिस्टेक मेरी गलती होती ही नहीं है, आई एम ऑलवेज राइट। ऐसा नहीं होता है, हमारी गलती होती ही नहीं है, वो दूसरे सब गलती वाले हैं। मैं बहुत सतर्क हूँ, मैं बहुत जागृत हूँ, मेरे से कोई गलती नहीं होती है। अभी कोई ऐसा कोई कहते तो हम मना थोड़ी करेंगे, ऐसा होता है। लेकिन इसीलिए सुनते भी नहीं किसी की, सुनाते बिल्कुल है। सुनाने का संजोग आता है तो पूरा अच्छे से सुना देते हैं। डोंट टेल मी एनीथिंग, ये अंदर से होता है। मुझे किसी को कुछ कहना नहीं है, मैं सब जानता हूँ।
दादा का ज्ञान तो समझाना ही नहीं कभी मुझे, मैं सब समझ के बैठा हूँ। नहीं होता है ऐसा। और जब कहते हैं ना तो अंदर से बहुत बड़ा ऐसा होता है, जैसे कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। मैं जब जानता हूँ मुझे मालूम है, ऐसा होता है। इसीलिए सुनने का कान बंद हो जाता है, बाहर से खुला होता है लेकिन ऐसा हो जाता है। दादा कहते हैं ना, हमने किसी की बात कान पर क्या बोले रखा नहीं है, धरी नहीं कोईनी बात में कान पर, એટલે બેરાશ આવી। हाँ, तो वो हमारा प्राथमिक पुरुषार्थ है। तो आप क्या करेंगे? दिव्य नियमन को ठीक करेंगे। हाँ, लेकिन यह पुरुषार्थ की भूमिका जो है ना, वो तब नहीं पता चलता है, लेकिन आपको बाद में पता चलता है, क्योंकि ये पुरुषार्थ की भूमिका होने पर, यानी वो अभी कार्यशील है। पुरुषार्थ की भूमिका कार्यशील है। कार्यशील यानी वो कार्य करती है, अभी एक्टिव वो है। लेकिन पैसिव में यानी जो आज जागरूकता से काम नहीं करता, लेकिन वो काम करता है पैसिवली, विज्ञान स्वरूप। आपको पता चलता है कि नहीं, यहाँ देखना तो चूक ही गए हम, देखना रह गया। यानी ये अंतरात्मा दशा की भूमिका की गलती बताता है। इसीलिए कहा स्व पर प्रकाशक है। वो देखता भी है और खुद की गलती को भी देखता है, लेकिन तब नहीं पता चलता। ये बात समझना जरूरी है। कई बार जो हम बाद में देखते हैं ना, वो अब देखते हैं ना, ऐसा बताते हैं। कैसे? मैंने देखा देवयानी बहन की गलती को, और जिन्होंने देखा ना उसको भी मैंने देखा कि उन्होंने गलती देखा करके। वो तब की बात नहीं होती है, वो बात की बात होती है। ये समझ में आया निर्मल जी? हाँ, देखो बता दो हमारी अभी की भूमिका क्या है। ये लाइट है ना, समझ लो, ये प्रज्ञा शक्ति है। प्रज्ञा शक्ति प्राथमिक प्रकाशित क्या करती है, नैनमल जी क्या करते हैं ना, वो आपको बताती है। यानी नैनमल जी का ये जो स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग, सूक्ष्मतर भाग और सूक्ष्मतम भाग की बात है, वो दिखाती है प्रज्ञा शक्ति। और जितना आपने अंतरात्मा में रहकर प्रज्ञा शक्ति के उपयोग से जितना देखा उतना प्रतिक्रमण करोगे, लेकिन वो पूरा देखने में भी गलती होती है। हम 100% नहीं देख पाते। उसका मतलब मैं बताता हूँ, उदाहरण देके। दाढ़ी करके आए, क्यों दाढ़ी क्यों ठीक नहीं की, क्या हो गया, ये क्या इधर रह गया, ये क्या इधर रह गया, बोले ऐसे कैसे रह गया? आईना ने बताया नहीं था, आईना ने दिखाया था कि नहीं? लेकिन आपका लक्ष्य नहीं था, इसीलिए जल्दबाजी में दाढ़ी करके बाहर आ गए, लेकिन वो अधूरी रही। और वो अधूरी इसी तरह से ये देखने पर भी पूरा प्रतिक्रमण होता नहीं है। और वो देखना ही 100% नहीं है। हमने देखना यानी भगवान के ज्ञान का उपयोग, प्रज्ञा शक्ति का उपयोग से हमने नामधारी को पूरी तरह से देखा भी नहीं है, क्योंकि उसका पूरा उपयोग नहीं किया है। जो जितना समझ में आया, ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए, तो उतना आपने किया। और जब बड़े बड़े दोस्त खड़े हैं ना, तो सूक्ष्मतर की बात नहीं करने की, वो तो स्वाभाविक है ना। पहले गुजराती में कहते जो ढेफा है तो पहला ढेफा साफ करो। पत्थर कड़े तो पत्थर को ऊपर, वो छोटा छोटे जो मिट्टी है ना, मिट्टी के पीछे मत पड़ो, वो बड़ा ये पत्थर रह जाएंगे। शिलाएं हैं, पत्थर नहीं, शिलाएं हैं जो किसको भी और इतनी परेशान करती है वो शिलाएं, यानी हमारा स्थूल व्यवहार। क्योंकि सबका पावरफुल प्रकृति वाले, सभी महात्मा बहुत पावरफुल प्रकृति वाले, कमज़ोर नहीं समझना। बाहर से अगर कमज़ोर है ना, वो हो सकता है,
लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल है ये ज्ञान। और आगे की प्रकृति, ऐसे लोगों को ही ये ज्ञान मिला है, कोई अरे गहरे को ज्ञान नहीं मिला है। इसीलिए महात्मा को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। महात्मा दादा के महात्मा है, फिर वो ज्ञान कहीं से भी लिया वो दादा के महात्मा है, नहीं तो फिर विकल्प करते हैं। इनसे ज्ञान लिया ना, वो तो ज्ञान ही नहीं है। अभी क्या करेंगे, ये बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी की बात है। एनीवे, तो ये बात है, समझ में आया? तो ये अंतरात्मा वाली भूमिका है ना, वो सब नहीं देखता, लेकिन तभी नहीं पता चलता है। लेकिन वो विज्ञान स्वरूप की जागृति है ना, तो आपको पता चलता है कि नहीं, सब कुछ नहीं देखा, क्योंकि इतनी सारी गलतियां तो बाद में पता चलती है कि निर्मल जी की तो इतनी सारी गलतियां हैं, लेकिन वो हुई और मैंने देखा नहीं। तो ये देखने की गलती हमें तब पता चलता है, लेकिन तब भी जब देखते होते तब पता नहीं, जब बाद में पता चलता है। लेकिन फिर भी वो पीछे से पता चलता है ना, तो हमारा निश्चय मजबूत करते हैं, प्रबल करते हैं। तो वो निश्चय प्रबल होने से फिर वो गलती कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। अभी दादा ने कहा हम ये गलती को करते 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 एक गलती को छोड़ा नहीं है हमने, और उसके अगर पता चली है तो उसका प्रतिक्रमण कर ही दिया है। इसीलिए हमें दरअसल खुमारी रहती है और भगवान हमें वश हो गए। अरे वो परिस्थिति को भी सोच के ऐसा होता है। और फिर दादा ने कहा, हमने भगवान को कह दिया, दादा भगवान को आप जा सकते हो, किसी और के पास चले जाओ। तो दादा भगवान ने क्या कहा पता है? वो अभी ये करके उन्होंने भगवान का अपमान नहीं किया है, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि हम दादा भगवान की ऐसी भक्ति, तीव्र सिंसियरिटी वाली भक्ति करते हैं कि अगर उन्होंने कुछ बता दिया तो हम वो काम पूरा करके ही रहते हैं, यानी गलती को निकाल के ही शुद्ध करके ही देते हैं। तो वो भगवान हमें वश हो गए और उनको बताया आप जाओ। तो वो बोले कहाँ जाऊँ, आपके जैसे कोई भक्ति करने वाले ही नहीं है, लोगों को दुनिया की चीज़ पड़ी है, मुझे मैं होते हुए भी मेरे तरफ लक्ष्य ही नहीं है। ये बात, लेकिन हमारी यात्रा उस तरफ जा रही है। एक ही है, संगम शरणम गच्छामि, छोड़ना नहीं। वो तो तीनों आ जाता है, लेकिन एक आखिर का उपाय यह है कि अगर आप संग में रहे ना, तो कोई ना कोई धक्का मारने वाले मिल ही जाएंगे। अरे क्या निर्मल जी आजकल दिखाई नहीं देते, अरे आना है, ये है वो है, ऐसा करके भी वो आ जाए। और दादा भगवान ने एक्सट्रीम में ऐसा बता दिया कि अगर हमारा दिमाग तो कभी भी खराब हो सकता है ना, बोले छोड़ के चले गया ना, किसी को बता देना कि मार के भी मुझे वापस ले आना। मैं कुछ भी मना करूँ ना, तो फिर जब आपने बता दिया है ना, अरे मारते क्यों हो, आपने ही कहा था, अभी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपने कहा था ना मार के भी ले आना, अभी आपको चलना है। ख्याल में आया? अभी दादा, आप सोचो कि दादा ने हमारी सुरक्षा ये कक्षा की करके गए हैं। बात समझना है, आगे का कोई विकल्प नहीं करना है, ये बात है। अभी ख्याल में आया? ये भूमिका हर संजोग में रहते 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 फिर आप बड़ी स्वस्थता में रहेंगे। गलतियां अगर आपको नहीं दिखाई दी तो कोई ना कोई बताएगा, तो बताते हैं तब उसका रक्षण मत करो, सीधा इतना कान पकड़ने में कितना टाइम लगता है, ऐसा कर लो ना। क्या है बार बार कान पकड़ते रहते हो भाई, और क्या करूं मैं, गलतियां रह जाती है तो कान पकड़ता हूं। और ये कान पकड़ने में उसके पीछे भी विज्ञान है, उसके पीछे भी विज्ञान है कि हमने अगर वो बात को स्वीकार की, हाँ मेरी गलती है करके, तो ये शरीर में अंदर ये पकड़ने से कुछ होता है और वो हमें सुधारता है। हमें ये आया कहाँ से, ऐसा करने क्यों बोला, ऐसा करने नहीं बोला, ऐसा करने नहीं बोला, नहीं, ये अंदर का कनेक्शन है। ये लोग, आप लोग करते ना, ये किया है कि नहीं आपने? नहीं, ये वाला पहना है कि नहीं? छेद किए, लेकिन छेद रखा, पहना नहीं है ना। लेकिन
तो पहनना चाहिए ना। हम दिखते हैं बहुत लोगों को। दादा सब छीन लिया, हाँ सब छीन लिया दादा ने। वो बराबर है, लेकिन वो 6 दर पहनने के पीछे का कारण वो है कि वो दबता है ना, करके जो दबता है ना, वो एक प्रकार का एक्टिवेट होता है नव हमारी नस, और वो हमें अंदर मदद रूप होती है। ऐसा है, उसका लक्ष्य ये है। आपने कहा ना मुझे बहुत बुरा लगा, ये प्रश्न होगा ही नहीं। ये बुरा लगने की बात क्या है? जिसको बुरा लगा तो बोले उसमें बुरा लगाने की क्या बात है आपको? अगर गलत हुआ है तो कोई बोलेगा ही ना, गलती मत करो फिर। अरे इतना किसी का सुनना नहीं है, बुरा लगाना नहीं है तो गलती मत करो। तो बोले मैं गलती नहीं करता हूँ, तो स्वीकार करो ना फिर। अगर आपने गलती नहीं की है तो स्वीकार लो, लेकिन कान पकड़ लो। बहुत अच्छा बताया है, बहुत अच्छा बताया। बस हमें तो समझ के कदम कदम आगे बढ़ते रहना है, ये बात है। सरलता भी होनी चाहिए। देखो हम लोगों ऐसे लोगों के साथ रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ हमने परिचय भी हुआ है या किया है कि जो सरल नहीं है, इसीलिए सब असरलता हमारे में भी आ गई है। अभी जैसे दादा की सरलता हमें समझ में आती है, और ऐसे महात्मा कुछ कुछ ऐसे सरल हुए हैं, तो आप देखेंगे तो आपके अंदर भी सरलता आ जाएगी। ये साथ में रहने, संगम शरणम गच्छामि का कारण यह है कि साथ में रहो। हमारी जो गलतियां हैं, जो अभी भी है, और दूसरे महात्मा में चली गई है ना, तो वो हमें बहुत प्रेरणा देती है, बल देता है निकालने के लिए। बस ऐसे ही रहो, क्योंकि वो जो अंदर खुला है ना, वो दोष रहित हुए हैं ना, वो उनके चारित्र में है। चारित्र बोलना नहीं पड़ता है, चारित्र खुद बोलता है, चारित्र खुद बोलता है। ये बात है। याना चाहिए बोला। टाइम हो गया? हाँ, जयश्री बहन बोलो ने। बोलो। बोलना तो चाहिए ना। वो क्या बोलते हैं उसको, मुख वो पट्टी बना के लेके आए तो क्या हुआ? कुछ नहीं, खून पीने वाले घूम रहे आजू बाजू। घूम रहा है, उसको भी सुनना है सत्संग। बोलो। सर्दी थी? सांस नहीं तकलीफ। बाद में बात करते हैं। बोलिए तो बोलना। महात्मा है तो आपको महात्मा, एटलीस्ट महात्मा के प्रति तो हमें ये हो जाना चाहिए, you start cherishing their presence, because whatever it is, वो लिविंग दादा है। वो अच्छा लगे बुरा लगे, वो प्रकृति का भाग है। वो हमें प्रकृति का भाग, उसके लिए क्या दादा ने क्या बताया, हम सभी के, किसी के भी प्रकृति के निष्प्रभ है, वो कैसी हो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो समस्या मेरी नहीं है, वो समस्या हकीकत में उनकी भी नहीं है, क्योंकि आगे से चली आई है। लेकिन वो जानते नहीं, वो परेशान है, वो खुद परेशान है कि ये मैं क्या करूँ इसका। तो हमें क्यों उसके बारे में ऐसा कुछ भी रखना चाहिए। तो सभी के प्रकृति के प्रति निष्प्रभ और आत्मा के प्रति सस्पृह। यहाँ तक पहुँचा है तो उसका काबिलियत है। क्या बताया? दादा के दरबार तक आया तो उसकी काबिलियत है, उसकी योग्य है। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। जब दादा ने उसको ज्ञान दिया है तो आप क्यों विकल्प करते हो कि ऐसा है वैसा है। हाँ, आपको वो सूट नहीं होता तो आप थोड़ा दूर रहो। ऐसा हो सकता है। इसलिए महात्मा
क्या मालूम वो सब पहले मुक्त हो जाए शुद्ध। एक्चुअली इसीलिए क्या बताया था पता है, एक अपना महाभारत की सीरियल में बताया था कि अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बताया था कि कभी कोई आपको मिल जाए तो कभी किसी के प्रति ऐसी घृणा नहीं करना, क्योंकि क्या बताया, क्योंकि वो तो कर्मवश उनकी ये स्थिति है जिसके कारण वो खुद भी आज असहाय है, लाचार है, तो उसके प्रति घृणा करना बिल्कुल अयोग्य बात है, योग्य बिल्कुल नहीं है। और हमें तो अभी वो तो बहुत स्थूल बात बताई, हमारे पास तो दृष्टि है, आज कर्म के परिणाम से वो रखड़ रहे हैं या ऐसी परिस्थिति है, किसी भी प्रकार की दरिद्रता है, कमजोरी है, लेकिन वो घृणा के पात्र नहीं है। हमें तो उल्टा उनके ऊपर क्या बोले, उनका करुणा भाव आना चाहिए कि कैसे भी करके उनका कल्याण हो, वो उसमें से निकल आए करके। और ये समझ के साथ अगर हम महात्मा के साथ रहें तो हमारी शांति जाएगी नहीं, जो भी है वो महत्व की है। दादा ने कहा मैंने हाथ में मोक्ष दिया है, हथेली में मोक्ष दिया है, तो हमें महसूस होना चाहिए ना। और महसूस होने का सामान्य परिणाम तो यही है ना कि हम बिल्कुल अस्वस्थ नहीं होते। बढ़िया। कीर्तन भक्ति बुला दो थोड़ा टाइम। हाँ है। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान ना असीम जय जय। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान ना असीम जय जयकार
જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય કાર જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય કાર જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 કાર જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 જયકાર હો જય સચ્ચિદાનંદ આવતીકાલનો કાર્યક્રમ कल सुबह સુરેશમાં, સુરેશ. इन्फॉर्मेशन पूरी आपको मालूम है। સુરેશમાં.